हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सो ऑन अ संडे मॉर्निंग, यस, वी आर हियर फॉर a very important discussion, that is campus placement guidance. I'm sure that you people are enjoying your time in your college. This has been almost a year since you started your college, and now this is definitely a very hectic time. Your internships, you're planning for your internships, you're planning for your certifications, internal exams, external exams, and a lot of committees and all that must be forming up. So in all this things, what today we'll be talking about is about campus. See, personally speaking, this has been my experience that every year we deal with lot of batches. और लास्ट बैच ही हम लोगों ने ऑलमोस्ट वी डिड deal with almost 75 students who were from MBA 23 बैच। और पूरा टाइम बेसिकली उनका इन सब जो बातें हमने अभी करी, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशंस, एग्जाम्स, इसमें निकल जाता है। और जैसे ही कैंपस आना स्टार्ट होते हैं उसके बाद वो उनकी तैयारी स्टार्ट करते हैं। सो आज हम लोगों का जो थीम है बेसिकली वो कैंपस के लिए, क्योंकि ये एक वेबिनार है, इसके थ्रू मैं आपको याद भी दिलाना चाहता हूँ दैट आप लोगों का जो पर्पस है बेसिकली एमबीए करने का, वो मोस्टली आई बिलीव एक अच्छा जॉब लेने का थॉट है आपके पास, और यू जस्ट डेफिनेटली वांटेड टू स्टार्ट विद अ वेरी हाई प्रोफाइल जॉब। और उसके लिए डेफिनेटली यू नीड अ स्ट्रेटेजी। अगर इस पूरे प्रोसेस में अगर आप इस पॉइंट को भूल जाते हो दैट वी आर हियर, वी आर डूइंग आवर एमबीए फॉर गेटिंग अ राइट जॉब, तो वो आपको काफी लेटर स्टेज पर रियलाइज होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो अभी तक अनप्लेस्ड हैं, और अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि बेसिकली हमें बहुत अर्ली स्टेज पे इस बात को रियलाइज करना है दैट कैंपस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो आज जो हम लोग 90 मिनट्स का डिस्कशन करने वाले हैं वो बेसिकली इसी के ऊपर है। और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन दैट जो भी आपके डाउट्स हो उन डाउट्स को आप बहुत फ्रैंकली पूछें। आप जिस स्टेज पे हो उस स्टेज से को हमने काफी बार देखा है, और we are into this particular industry for last 5 years, so we are closely dealing with students like you, right? So आप लोग बिल्कुल frankly जहां भी आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उसको जरूर पूछें। सो यस, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का बेसिकली थीम ही जॉब प्लेसमेंट है, कैंपस प्लेसमेंट गाइडेंस है। So before I start a little bit about what we do, we are basically a campus place preparation company. It is founded in 2017. Post that, we have trained close to 3,000 students for campus placements. So yes, definitely these 3,000 students are now working with the very, very large corporates all across the country. Some are even working outside India. And definitely it's a proud moment for us when we say that we have a large network of professionals who are working all across India and abroad. Uh, our domestic highest package is 24 lakhs and international is 45 lakhs. So one of our student, he has been placed with Olam International at 45 lakhs. And there are a few students who have got placed at 24 lakhs. So this is our highest package that has been offered. For MBA student, it is 15.25 lakhs. You may be knowing a company called as RCCM. बहुत सारे लोग जब प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो आरसीसीएम की बात होती है, क्योंकि वो ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा पैकेज ऑफर करती है। आपने आई एम श्योर आप लोग भी, जो लोग एमबीए फाइनेंस स्ट्रीम से हैं, दे मे बी having idea about that. So one of our student, he got placed in that. So we have a very, very large alumni network. I already talked about it, and 100% students who have been placed through us. Our special focus is on technical skills and company specific preparation. So this is what we do. Uh, these are the companies which in which the students have been placed in the last 2 to 3 years. These the Some of the prominent companies are RCCM, Deloitte. These two companies regularly participate
Apart from that, if we talk about companies like S&P, this also participate. These three companies generally participate on a regular basis. And after that, if we talk about some banks, so ICICI, HDFC, they are also companies which normally participate. And if we talk about marketing, yes, Berger Paints, then Amul, then Colgate. These are some of the top names. I'll show you the list of the companies जो जनरली पार्टिसिपेट करती हैं, और उसके बाद आप एक आइडिया आपको लग जाएगा. आज का हमारा जो पर्पस है वो बेसिकली यही है कि आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाए, सो दैट आप जब तैयारी इतनी स्टार्ट करें तो आपकी तैयारी आज से ही स्टार्ट हो जाए. मे बी विल टेक लिटिल स्टेप्स लेकिन आज से ही हम लोग वो स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दें. जनरली ये देखा गया है कि जो कंपनीज कैंपस में आती हैं वो लगभग लगभग सिमिलर होती है. नेक्स्ट ईयर भी आप देखेंगे, हम लोग इस ट्रेंड को लास्ट 5 इयर्स से ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो जो कंपनी 2018-19 में आई थी वो ही 1920 में आई, 2021, तो मैक्सिमम 80% कंपनीज यू कैन से वो रिपीट होती हैं. केवल 20% कंपनीज में चेंजेस होते हैं. तो एक ट्रेंड अगर आप नोटिस करोगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा. आप आगे की तैयारी कर सकते हो. आपके लिए एक सरप्राइज नहीं रहेगा. आपको पता रहेगा कि ओके, ये कंपनी लास्ट टाइम भी आई थी, उसके पहले भी आई थी, उसके पहले भी आई थी. इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के आने के चांसेस बहुत हाई है, राइट. तो इस तरह से आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. और every large company, you name it, and we'll have some or other student who may be working over there, right? So all top banks, top corporates, we are doing the trainings for CA, chartered accountants also. So there is a large community of chartered accountants as well. They are also working in these companies which are there on your screen. This is yes, last year's picture. This where we have celebrated with 2022 batch. Yes, so these are the names of the companies. This was, I would say, one of the best campus which went. लोगों ने कहा था कि कोविड के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मार्केट डाउन हो गया है, कंपनी आ नहीं रही है. लेकिन बिलीव मी, ये इस बैच में जो कंपनीज आई थी, राइट, वो अभी तक नहीं आई थी. इतने ज्यादा कंपनीज ने पार्टिसिपेट करा था. और बड़ी कंपनीज, राइट, सम ऑफ द कंपनीज वर केपीएमजी, डेलॉइट, दोस काइंड ऑफ कंपनीज. सो आपके पास आज हम जो बात करेंगे, क्योंकि आप लोग अलग अलग कॉलेजेस से भी हो, तो मैं एक जनरलाइज बात भी करूंगा, कुछ कॉलेज स्पेसिफिक बात भी करूंगा, और ऑफ कैंपस बात भी करेंगे. मतलब इट्स अ मिक्स डिस्कशन. बट हम लोग जनरली जो बात कर रहे हैं वो सम ऑफ द प्रोमिनेंट कंपनीज जो जनरली हर बार विजिट करती हैं, उसके बारे में खास तौर पर बात करेंगे. और ये बेसिकली हमारा अभी का प्लेसमेंट रहा है, वेयर वी हैव seen some of the names which were not there earlier, like Wipro, Blackstone, NRI, Fintech, Alliant Group. So these are also companies which participated in this particular one, and these students have been placed over there. This is this student. Yes, he has got placed with RC Gym, right? RC Gym generally सबसे difficult process होता है उसका, और इस प्रोसेस को भी आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, दैट हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर वन. डेफिनेटली इट इज अ फैंटास्टिक प्रोफाइल, फैंटास्टिक पैकेज. जनरली जब हम लोग बात करते हैं तो एक पॉइंट होता है कि हाउ हाउ विल यू सिलेक्ट अ कंपनी. आप कंपनीज किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हो. तो ज्यादा करके जो मुझे रिप्लाई आते हैं स्टूडेंट्स के, वो एक ही क्राइटेरिया आता है कि हम तो पैकेज के बेसिस पे डिसाइड करते हैं. अगर पैकेज अच्छा है तो पैकेज डेफिनेटली इम्पोर्टेंस रखता है, बट एट द सेम टाइम यस, प्रोफाइल भी इम्पोर्टेंस रखती है. तो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल और पैकेज के बारे में भी बात करेंगे. नाउ आई विल फॉर्मली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज गुंजन श्रीमाल. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम इंदौर alumni. I have worked with multiple corporates before starting Camp Prep. I have worked for companies like, the names are there: Apollo Hospitals, Idea Cellular, Bank of America, Axiata, Ticona. So this is definitely a very, very large
I mean, I have worked almost 10 years, 10 to 12 years in the industry and worked with various corporates. Uh, Abroad also, I worked for 2 years, but mostly my experience had been in Mumbai. Uh, all these years of experience told me that there is definitely a gap between the when you study and what the industry expects. हम लोगों ने काफी इंटरव्यूज करे थे, लाइक आई डू डिड इंटरव्यू फॉर माय टीम एज वेल। और उस टाइम पे हमने रियलाइज किया कि फ्रेशर्स एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव लेते हैं और इंडस्ट्री को एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव चाहिए होता है। तो इस गैप को हमको कहीं ना कहीं फिल करना है। और that's why, like, when I started this particular training company, yes, we did incorporate all those practices जो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस हैं। उस एक्सपेक्टेशन को हम कोशिश करते हैं कि फुलफिल कर सकें। और जितना भी एक एक्सपीरियंस आई हैव टेकन इन माय कॉर्पोरेट लाइफ, राइट, आई ट्राइड टू इम्पार्ट दैट वन टू द स्टूडेंट्स। जो हम लोग का एक नेटवर्क है, राइट, उस नेटवर्क को आप अच्छे से लेवरेज कर सकें। सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी पर्सनली बिलीव दैट वन शुड डू। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में रहते हैं, राइट। दीज क्वेश्चंस आर अराउंड what kind of profile I should go for, what kind of companies they participate, क्या कंपनीज के सिलेक्शन राउंड्स होते हैं, कंपनीज इंटर्नशिप के ऊपर कितना फोकस करती है, कंपनी सर्टिफिकेशंस डिमांड करती है या नहीं करती है, रेज्यूमे में हमको क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, राइट। एंड देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू काइंड ऑफ कंपनीज कि हम बैंक्स ज्वाइन करें या फिर मार्केटिंग के स्टूडेंट्स की बात करें अगर, तो उनके माइंड में होता है कि हम एफएमसीजी में जाएं या फिर हम ई कॉमर्स में जाएं। तो ऐसे करके आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस स्टेज पे। और ज्यादा करके जब हम बात करते हैं स्टूडेंट से तो दे आर अनक्लियर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा टू मेक दिस डिस्कशन वेरी स्पेसिफिक। इफ यू कैन राइट योर स्ट्रीम, राइट, इफ यू आर फ्रॉम फाइनेंस, आप चैट बॉक्स में अगर एफ लिख देंगे, अगर आप मार्केटिंग से हैं तो एम लिख देंगे, और अगर आप किसी और स्ट्रीम से हैं तो अगर फॉर एग्जांपल एचआर से हैं तो एच लिख दीजिए, अगर आप और किसी स्ट्रीम से हैं। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू हेल्प यू इन द फर्दर डिस्कशन। All right, so we have, okay. All right, great. Thank you very much. So we have people from finance, marketing, HR, right? So हम लोग थोड़ा थोड़ा सभी कवर करेंगे, ओके। एंड आप लोग के अगर कोई क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो आप बिना हेजिटेशन के उनको चैट बॉक्स में लिख सकते हो। लाइक विल टेक टाइम ऑल्सो, अगर आप चाहें तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चन है। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कौन से प्रोफाइल ज्यादा बेटर है, जॉब स्टार्टअप में करें या फिर हम लोग किसी एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन में करें। सो ये जितने भी सवाल हैं, राइट, ये जितने भी क्वेश्चन है, इसको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है कि आप जॉब मार्केट क्या बोलता है, अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री जॉब मार्केट। सेकंड इज सेल्फ क्लैरिटी, राइट, आपको मार्केट की क्लैरिटी के बाद सेल्फ क्लैरिटी भी होना बहुत जरूरी है। और थर्ड पॉइंट आ जाता है, दैट इज बेसिकली कैंपस प्रिपरेशन। सो इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमारा रहेगा अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री एंड जॉब मार्केट, ठीक है। तो इंडस्ट्री और जॉब मार्केट ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो इंडस्ट्री जॉब मार्केट में आप एक तरह से आप अपनी एंट्री लेने वाले हो, करेक्ट। तो आपको सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि बेसिकली जॉब्स हमारे पास किस किस टाइप के हैं, या फाइनेंस इंडस्ट्री एज अ होल अगर पूरे यूनिवर्स की बात करें तो फाइनेंस इंडस्ट्री में किस टाइप के जॉब्स होते हैं। तो ये स्लाइड मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप इसका एक स्नैपशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि इनमें से किसी एक वर्टिकल में आप काम करेंगे। ये जो येलो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, राइट, तो इन येलो बॉक्सेस में से कोई एक बॉक्स रहेगा जिसमें आप वर्क करेंगे आफ्टर अ ईयर। इसके ऊपर आप देख रहे हो कि कुछ नंबर्स लिखे हैं, राइट, 1 2 लाइक दैट। तो आप में से कोई भी बता सकते हैं कि बेसिकली ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं।
एनी गैसेस? ये जो नंबर्स हैं बेसिकली इन बॉक्सेस पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, सो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके हिसाब से? यस, एनीवन? कोई भी आप कुछ भी गैस ले सकते हो। ऑल राइट, सो LOD means sequence of opportunities in which an MBA finance student should go. Very good answer. Yes, this is the right answer. Okay, well done, Nishi. So basically this is the sequence, right? आपको बहुत सारे जॉब्स दिखेंगे, राइट? आप फिर आपके माइंड में सवाल भी आएगा कि ये जॉब लेना है या नहीं लेना है, राइट? तो ये कहीं ना कहीं उस तरह का पॉइंट है। जो ऊपर आप नंबर्स देख रहे हो, ये बेसिकली प्रेफरेंसेस हैं। जो लोग IIM अहमदाबाद से निकलते हैं, राइट, या आप हार्वर्ड से निकलते हैं, तो जो टॉप 20 स्कूल्स हैं दुनिया के, उनके स्टूडेंट्स जब फाइनेंस से निकलते हैं या मार्केटिंग से निकलते हैं, उनका बेसिकली टारगेट क्या होता है? उनका बेसिकली टारगेट होता है कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी। ये मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ जनरली, फाइनेंस के स्टूडेंट्स की। सो इसका मतलब ये है कि ये टॉप प्रायोरिटीज हैं। लेकिन क्या ये आपके कॉलेज में या आपको अवेलेबल हो पाती है? अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि हमको ये भी पता होना चाहिए कि क्या हमारे लिए अवेलेबल है, क्या नहीं है, और क्या दूसरी जगहों पे अवेलेबल है, या ऐसी कोई चीज है जो सब जगह अवेलेबल है, अच्छी भी है, उसके लिए क्या मैं मेहनत करके उसको ले सकता हूँ? ये सब चीजें भी आपको सोचनी है। तो मैं आपको पहले केवल एक यूनिवर्स बता रहा हूँ, और साथ में हम ये डिस्कस करते जाएंगे कि आपके कॉलेजेस में, आपकी सिटी में कौन सी कंपनी जनरली आती है, किस टाइप की कंपनीज आती है। सो कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, ये बेस्ट प्रोफाइल्स हैं। पैकेजेस भी बेस्ट है। अ, जितने भी दुनिया के बेस्ट फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, वो सभी इसको लेना चाहते हैं, राइट? जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मैं भी चाह रहा था कि मेरी एंट्री भी इस रोल में हो जाए, राइट? तो ये डेफिनेटली बहुत टफ रोल्स हैं। इसमें एंट्री लेना नेचुरली एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। सो जनरली Tier 1 कॉलेजेस, या फिर जिन लोगों ने CFAs क्लियर किए होते हैं, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी बात करें तो रैंक होल्डर्स, ओके, उनको जनरली इसमें प्रेफरेंस मिलता है। उसके बाद सेकंड की बात करें, इक्विटी रिसर्च। ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको मिलेंगी, राइट? इसमें भी दो तरह की कंपनीज मिलेंगी। एक आपको फॉरेन कंपनीज मिलेंगी, फॉरेन बैंक्स, राइट? उसमें एंट्री डिफिकल्ट है, लेकिन इंडियन काउंटर पार्ट्स में ईजी है। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं इक्विटी रिसर्च की जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट? मैं आपको अगर कुछ नाम बताता हूँ, तो कंपनीज लाइक मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी, डेसिमल पॉइंट, एक्सेल डायनामिक्स। ये वो कंपनीज हैं जो जनरली हम देखते हैं कि कंपनीज पार्टिसिपेट भी करती हैं। ठीक है, तो आपको इक्विटी रिसर्च डेफिनेटली आपके प्रेफरेंस में होना चाहिए। इट्स अ वेरी डायनामिक रोल, और इसको आप डेफिनेटली एक हाई प्रेफरेंस दे सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बैंक्स आ जाती हैं, राइट? बैंक्स अलग अलग रोल्स के लिए आती हैं। बैंक्स को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो। तो एक चीज आपको हमेशा समझना है कि फाइनेंस इंडस्ट्री में आप भी हो। Tier 1 कॉलेज के MBAs भी हैं, Tier 2 कॉलेज के MBAs हैं, Tier 3, Tier 4। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे आपको, फिर CFAs मिलेंगे, ACCA मिलेंगे। तो कंपटीशन बहुत टफ है फाइनेंस इंडस्ट्री में। आपको आपका कौन सा एरिया है उसको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर MBAs की हायरिंग बहुत होती है, क्योंकि फाइनेंस वर्ल्ड अपने आप में बहुत बड़ा है, राइट? तो हमको एक चीज आइडेंटिफाई करनी है कि हमारे लिए कौन सी कंपनीज आती हैं जनरली, और इंडस्ट्री हमारे कॉलेज या हमारी सिटी में से कौन से कंपनीज जो रेगुलरली विजिट करती हैं। तो आप उसी की तैयारी करो। उसके अलावा अगर आप तैयारी करोगे तो इट कुड बी वेस्ट ऑफ टाइम ऑल्सो। इसलिए इक्विटी रिसर्च एक ऐसा फील्ड है जिसमें MBAs को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इंडस्ट्री मानती है कि MBA फाइनेंस में वो कैलिबर होता है कि वो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। इसलिए इसकी आपको तैयारी डेफिनेटली करनी चाहिए। इट्स अ वेरी गुड जॉब रोल। बैंक्स के लिए डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए। बैंक्स 3 रोल के लिए आती है। एक होता है क्रेडिट, एक होता है ऑपरेशंस, एक होता है सेल्स। जनरली सेल्स के लिए मैं जो लोग कोर फाइनेंस के हैं लोग हैं, उनको यही बोलता हूँ कि सेल्स को आपको प्रायोरिटी थोड़ी बात की देनी चाहिए। इनिशियली यू शुड गिव प्रायोरिटी टू क्रेडिट एंड ऑपरेशंस।
कंपनी जनरली आप देखते हो एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस, लगभग सभी सब कंपनीज हायर करती हैं। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट में आपको बहुत टफ कंपटीशन मिलती है अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट से। कंपनी सीएस को बहुत प्रेफरेंस देती है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि एमबीएस को भी कंपनीज हायर करती हैं। तो ये भी एक एरिया है जहाँ पर आप सोच सकते हो। अभी लास्ट टाइम ही एचडीएफसी क्रेडिट प्रोफाइल के लिए आई थी, और उसमें हम लोगों ने देखा था, हम लोगों के भी 5 स्टूडेंट्स दे गॉट प्लेस इन एचडीएफसी। उसके बाद आती है कैटेगरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट फॉर्म्स की। मतलब ये तीनों को हमने सेकंड प्रेफरेंस दिया है, क्योंकि तीनों एक जैसी प्रोफाइल है, इसमें लर्निंग भी है, ब्रांड भी है, और रिकॉग्निशन भी है। अकाउंटिंग और ऑडिट फॉर्म्स, राइट, डेलोइट आप सभी को पता है। डेलोइट जनरली पार्टिसिपेट करती है, काफी सारे कॉलेजेस जो हैं उसमें डेलोइट का पार्टिसिपेशन होता है। और जहाँ पर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, वहां पर दे कैन अप्लाई ऑफ कैंपस ऑल्सो, क्योंकि वो एमबी फाइनेंस को हायर करती हैं। उनका एक रेगुलर मैंडेट है बेसिकली टू हायर एमबी फाइनेंस। सो यहाँ पर आप देखते हो बिग फोर फर्म्स, राइट, एवरीबडी नोज विच ऑल आर बिग फोर फर्म्स। आप लोगों को बिग फोर पता है? Yes, if you know which all are big four, is please write their names in the chat box. KPMG, yes, very good. Deloitte, yes, very good. PwC and EY, fantastic. Okay, well done. तो देखो, दुनिया की 4 बहुत बड़ी बिग फोर जिनको बोलते हैं, ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फर्म्स हैं। दे जस्ट वांटेड people who are who want to start their career with auditing or taxation or accounting, right? ये उनके लिए ड्रीम कंपनीज हैं, क्योंकि इनके ऑपरेशंस आप समझो कि मोर देन 100 कंट्रीज में है, राइट, एक अलग स्केल पे ये लोग काम करते हैं। इसमें से एक कंपनी जो है डेलॉइट, वो रेगुलरली पार्टिसिपेट करती है आपके कॉलेजेस में। तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव दैट ये कंपनी है जिसके लिए आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा केपीएमजी आल्सो इट पार्टिसिपेटेड, लेकिन नॉट रेगुलरली, आई हैव सीन इट ओनली वंस और ट्वाइस, राइट। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि लाइक ये कंपनी रेगुलरली पार्टिसिपेट करेगी। इसके अलावा लाइक वी हैव सीन द कंपनी कॉल्ड एज अलायंट। अलायंट इज आल्सो इनटू टैक्सेशन, राइट। तो ये भी एक फॉर्म है जिसमें आप थॉट दे सकते हो। कॉर्पोरेट फाइनेंस और अकाउंटिंग वर्क, राइट, यहाँ पर ये हम एक कंपनी, एक जो किसी टिपिकल कंपनी का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है उसकी बात कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर अब आपको अगेन कंपटीशन किनसे मिलती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट से, क्योंकि वो लोग 3 साल और की एक आर्टिकलशिप कर कर आते हैं, जिसमें उन्होंने हार्डकोर अकाउंटिंग का काम किया होता है, ऑडिटिंग का काम किया होता है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसलिए इसको मैंने नेक्स्ट प्रायोरिटी दी है। प्रायोरिटी में ये थर्ड नंबर पे है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बहुत टफ कंपटीशन मिलेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट से। उसके बाद आईटी और टेक रिलेटेड वर्क, आजकल आपको पता है पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे एमबीए फाइनेंस के भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग टेक रिलेटेड रोल में चले गए। टेक रिलेटेड मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, टेक्नो फाइनेंस रोल आप बोल सकते हो। तो ये कोर फाइनेंस वर्क नहीं है, इसमें आपको किसी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसमें आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए फाइनेंस का, लेकिन मेनली नॉलेज किसका चाहिए? टेक्नोलॉजी का। तो ये भी एक पर्टिकुलर रोल्स हैं जो अवेलेबल है, लेकिन इसको भी मैंने बात की प्रायोरिटी दी है, क्योंकि आप लोगों को पहला फोकस करना चाहिए कोर फाइनेंस पर, और लास्ट प्रायोरिटी हमने दी है सेल्स को, राइट। वो तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी लास्ट ही प्रायोरिटी दी होगी, जो लोग कोर फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, राइट। अगर उनकी बात करें तो आपने भी सेल्स को लास्ट प्रायोरिटी दी होगी, ठीक है। इसका ये मतलब है क्या कि सेल्स इतना अच्छा जॉब नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि ऐसा नहीं है। सेल्स अपने आप में बहुत अच्छा रोल और अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, लेकिन क्योंकि आपने अपनी स्ट्रीम फाइनेंस सेलेक्ट करी है, तो आप चाहते होंगे कि आप फाइनेंस, कोर फाइनेंस में अपना करियर स्टार्ट करो। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेम्बर, जितने भी सीईओज हैं, बिजनेस हेड्स हैं, कंट्री हेड्स हैं, ये सब सेल्स मार्केटिंग के रोल से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है, राइट। तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि सेल्स इज ब्रिंग्स द ब्रेड एंड बटर फॉर एनी बिजनेस। जितने भी आप कंट्री हेड्स देख रहे हो, ये सब मार्केटिंग सेल्स से निकल कर आए, ठीक है। तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आपको आई थिंक ये सिनेरियो क्लियर हो गया है।
ठीक है, अब आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन एक एक करके ले लेते हैं। फाइनेंस प्लस डेटा एनालिटिक्स, फाइनेंस प्लस डेटा एनालिटिक्स एज सच देखो उसके लिए कोई अलग जॉब्स नहीं होते। अह, इन्हीं कैटेगरीज में से किसी एक कंपनी में आपको डेटा एनालिटिक्स का जॉब मिल सकता है। नाउ डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है डेटा को एनालाइज करना। अब वो कौन सा डेटा हो सकता है, वो टैक्सेशन का डेटा हो सकता है, वो अकाउंटिंग का डेटा हो सकता है, वो पर्टिकुलरली किसी कंपनी के बजट का डेटा हो सकता है, रिसर्च कंपनी में जाएंगे तो उस रिसर्च का डेटा हो सकता है। सो डेटा एनालिटिक्स इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी, बट इट हैज टू बी एसोसिएटेड विद एनी डिपार्टमेंट। एचआर की अपॉर्चुनिटी और प्लेसमेंट, यस थोड़ा बहुत हम उसके बारे में बात करेंगे, दैट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन द एचआर कंपनीज एज वेल। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड के दो मतलब थे। Okay, one more question. I am a student from BTech. Can I grow my career in finance because I have taken it in MBA and I am confused with my field? नहीं, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन से लोग आते हैं। हम लोगों ने देखा है कि लास्ट हमारी जो बैच थी उसमें पीपल फ्रॉम BTech, BSc, then there were from BA also, Bachelor of Arts. Then some were from the nutrition side also. So सब लोगों ने अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो देखो चैलेंज आएगा आपको, कि इसमें कोई डाउट नहीं है। उस चैलेंज के बारे में मैं बात करता हूँ, क्योंकि जब हम कंपनी शॉर्ट लिस्टिंग की बात करेंगे कि कंपनी किन लोगों को शॉर्ट लिस्ट करती है, वो क्या देखती है, तो वहां पर आप हम इस बारे में और डिस्कशन कर लेंगे कि शॉर्ट लिस्टिंग में कहाँ इशू आ सकता है। तो उसके बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो। बट बहुत सारे इंजीनियर्स हमने देखे हैं जो लोग फाइनेंस लेते हैं, और उसमें सच कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस स्लाइड का मतलब ये है कि कितनी कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, टाइप ऑफ कंपनीज, कौन सी इंडस्ट्रीज आती है, और आपकी प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। राइट, ये मेरा एक थॉट है, बाकी आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हो। और ये हम प्रोफाइल के हिसाब से बात कर रहे हैं, जब हम पैकेज के बारे में बात करेंगे तो नेचुरली फिर चीजें थोड़ी चेंज हो जाती है। सेकंड पॉइंट आ जाता है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग स्टूडेंट से अगर हम ब्रॉडली बात करें, तो बिलीव मी सारी ही इंडस्ट्रीज आप लोगों को हायर करने के लिए रेडी है। अगर आप पिछला ट्रेंड देखोगे, हमने एक ट्रेंड एनालाइज किया था, तो टेलीकॉम कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, आईटी कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, मतलब आप समझो कि सारी ही इंडस्ट्रीज एमबीए के स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए आती हैं कॉलेजेस में। और आप लोगों को एक ओपन माइंडसेट लेके चलना है। ठीक है, ऑल्दो मैं सुनता हूँ काफी सारे मार्केटिंग के स्टूडेंट्स से कि हमें तो केवल एफएमसीजी में जाना है, बट ऐसा नहीं है। राइट, आप लोग भी इस स्लाइड का एक स्नैपशॉट ले लीजिए। बेसिकली आप लोगों को 4 से 5 कंसिडरेशंस रखने चाहिए। पहली बात है इंडस्ट्रीज, सेकंड इज इट इनटू B2B और B2C और D2C। सेकंड, लोकेशन क्या दे रहे हैं। थर्ड फोर्थ, पैकेज क्या दे रहे हैं, उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, और सेल्स का प्रेशर कितना है। आपको बेसिकली इन सब क्राइटेरियाज की बेसिस पर डिसाइड करना चाहिए। बाकी ऐसा कोई स्पेसिफिक माइंडसेट मत बनाइए कि मुझे एफएमसीजी में ही जाना है या मुझे बेसिकली बैंकिंग में ही जाना है। वो एक अप्रोच मेरे हिसाब से उतनी सही नहीं है। सेकंड, आप लोगों को एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि सेल्स और मार्केटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको थ्रू आउट 2 इयर्स ये पढ़ाया जाता है कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग में क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, बड़ी बड़ी मार्केटिंग की आपको थियरीज पढ़ाई जाती हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि आपका जो जॉब है वो सेल्स के अंदर है, और सेल्स और मार्केटिंग थियोरेटिकली आप लोगों को पता है क्या डिफरेंस है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली समझना है कि सेल्स और मार्केटिंग एक दो अलग अलग डिवीजन है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट है। जो काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट कर रहा है वो सेल्स नहीं कर रहा है, और सेल्स जो कर रहा है वो मार्केटिंग नहीं कर रहा है। जब हमें पढ़ाया जाता है तो हमें ये सब पढ़ाया जाता है कि सेल्स इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। तो आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के सर्टिफिकेट्स करते हो या जो भी आप चीजें करते हो, सोच समझ के करो। आप आपका जॉब कंप्लीटली डिफरेंट है। सेल्स में आपको मिलेगी जॉब,
और डिजिटल मार्केटिंग का उससे कोई कनेक्शन नहीं। इसलिए मेरा आप लोगों को ये सजेशन है कि पहली बात तो ये याद रखिएगा कि सेल्स और मार्केटिंग दो अलग अलग डिविजन्स होते हैं कॉर्पोरेट्स में। हम लोग मार्केटिंग पढ़ते हैं पूरे टाइम, लेकिन अल्टीमेटली जॉब मिलता है सेल्स में। तो आपको सेल्स ओरिएंटेड थॉट ही रखना है अपना शुरू से। ठीक है, इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे आगे, राइट। सो अब हम आ जाते हैं कि कौन सी जनरली कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं और क्या उनके नॉर्मली पैकेजेस होते हैं। ये मैंने लास्ट जो अभी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था उसको सीक सॉर्ट कर लिया है, राइट, हायर पैकेजेस टू लोअर पैकेजेस पर। सो आई एम श्योर कि एकदम आपको शायद क्लियर नहीं होगा ये आपकी स्क्रीन पे इफ यू आर अटेंडिंग फ्रॉम मोबाइल फोन। सो देखो, आरसीसीएम सबसे ज्यादा ऑफर करती है, 15 lakhs के आसपास ये ऑफर कर रही है, और ये नेचुरली सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट देख रहे हो आप वो 8.6 है। इसका मतलब ये है कि इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई। 15.2 इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट अदर्स आर ऑफरिंग। तो नेचुरली उनका सिलेक्शन प्रोसेस भी उतना ही टफ रहेगा। नेचुरली उनकी जो प्रोफाइल रहेगी वो भी उतनी ही इंटरेस्टिंग रहेगी, उतनी डायनामिक रहेगी, उतनी चैलेंजिंग रहेगी, और उतनी रिवॉर्डिंग रहने वाली है। सो आप लोगों को आरसीसीएम के लिए डेफिनेटली एक अलग तरह की प्रिपरेशन करनी है, और करनी चाहिए, राइट। यू शुड ऑलवेज गिव अ ट्राई टू दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल्स। ये आपको वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जहां से भी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा करियर ग्राफ वहीं से आगे बढ़ता है। आज कोई 15 से स्टार्ट करेगा तो नेक्स्ट ईयर दे विल बी 17, देन 19, देन 21। आज कोई 5 से स्टार्ट करेगा तो उनका 5, देन 7, देन 9। तो ये जो ग्रोथ है बेसिकली, इस ग्रोथ को हमको समझना है कि इसको आप अच्छे से समझिएगा, दैट ये जो डिफरेंस है ये लाइफ में कभी भी कम नहीं होते, ये बढ़ते जाते हैं टाइम के साथ। सो आरसीसी यस, इसकी प्रोसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं एक बार आपको क्या कंपनीज आती हैं और उनके पैकेजेस क्या हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आरसीसीएम इज वन, एचडीएफसी ऑफर्ड अराउंड 8.6, डेलॉइट ऑफर्ड 7.6। डेलॉइट इज वन सच कंपनी जो मैं शुरू से देख रहा हूँ कंसिस्टेंटली आ रही है, पार्टिसिपेट कर रही है और स्टूडेंट्स को हायर कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे पहली कंपनी जो होती है कैंपस का जो स्टार्ट होता है, राइट, जो कैंपस के मैचेस जो स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट ही इस मैच के साथ में होता है। आपका जो पहला वो रहेगा वो डेलॉइट के साथ नहीं रहने वाला। तो अ, दूसरी बात ये भी याद रखनी है आपको कि इनके नोटिफिकेशंस बहुत जल्दी आते हैं। मतलब आपको हो सकता है एक हफ्ता पहले पता चले कि नेक्स्ट वीक डेलॉइट आने वाली है। और 90% स्टूडेंट्स बेसिकली यही गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि कोई डेट डिक्लेयर होगी, कहीं कुछ बताया जाएगा इस दिन ये कंपनीज आएंगी। देखो, ये सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग पॉइंट होता है अनफॉर्चुनेटली, कि किसी को भी पता नहीं होता है कि वो कंपनी कब पार्टिसिपेट करने वाली है। ब्रॉडली बता सकते हैं, मैं भी आपको ब्रॉडली बता सकता हूँ कि डेलॉइट विल पार्टिसिपेट इन द मंथ ऑफ अगस्त। लेकिन अगर आप मेरे को बोलोगे कि अगस्त में कौन से वीक में आने वाली है या क्या डेट रहने वाली है, मैं नहीं बता सकता। लास्ट टाइम वी रिमेम्बर आरसीसीएम हम 2 साल से देख रहे थे कि आरसीसीएम आती थी तो एक 10 दिन 15 दिन पहले पता चल जाता था कि आरसीसीएम आने वाली है। लास्ट टाइम आई रिमेम्बर इट पार्टिसिपेटेड ऑन 19th of September। 19 सितंबर को आरसीसीएम ने पार्टिसिपेशन किया और उसका नोटिफिकेशन आया था 17 सितंबर, जस्ट 2 दिन पहले। अब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो कि 2 दिन में कोई इसकी तैयारी कर सकता है। 2 दिन तो खैर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन इसके लिए आपको 10 दिन भी कम है, 15 दिन भी कम है, 20 दिन भी कम है। आरसीसीएम की तैयारी में इतना टाइम लगता है, तो 2 दिन के नोटिफिकेशन में। तो इसलिए एक बात आपको याद रखनी है कि जितनी भी कंपनीज आप टारगेट कर रहे हो उसकी तैयारी आप पहले से ही करिए। थोड़ी थोड़ी तैयारी आपको शुरू से ही स्टार्ट करनी है, राइट। ओके, सो आरसीसीएम, देन एचडीएफसी, डेलॉइट एक कंपनी और
लास्ट टाइम लास्ट 2 years में देख रहा हूँ वन कंपनी विच इज पार्टिसिपेट इज कॉल्ड एज अलायंट ग्रुप. Okay, it is also they have also hired in taxation profile. Then Wipro Blackstone, this is also one of the nice profile which they offered. इसमें बेसिकली वैल्यूएशन और फंड अकाउंटिंग ये वाला रोल उन्होंने ऑफर करा है. उसके बाद बजाज फाइनेंस, रेनस लॉजिस्टिक्स, HFFC, अमूल. अब इसमें देखो कुछ कंपनीज सेल्स रोल के लिए भी आई थी. अगर पैकेज की बात करें तो जैसे कि बजाज हाउसिंग ये सेल्स के लिए आई थी. अमूल की अगर बात करें तो ये अकाउंटिंग प्रोफाइल के लिए आई थी. इसमें आपको एक हार्डकोर अकाउंटिंग का नॉलेज होना जरूरी है, अकाउंटिंग टैक्सेशन इस टाइप के रोल के लिए. और बाद में फिर आप देखते हो तो फिर पैकेजेस कम होते जाते हैं, 5.5 लाइक दैट. S&P ग्लोबल ये कंपनी है जो रेगुलरली हायर करती है. हर साल आज तक मैंने नहीं देखा है पिछले 3-4 सालों में कि S&P ने पार्टिसिपेट नहीं करा हो. दे आर पार्टिसिपेटिंग एवरी ईयर. लेकिन एक ही बात होती है कि इनका जो पैकेज है वो कंपेरेटिवली लेसर होता है बाकी कंपनीज के केस, बाकी कंपनीज से कंपेयर करें तो. लेकिन S&P इज अ वेरी वेरी बिग ब्रांड. अगर आपको S&P में जॉब मिलता है तो जरूर जाना चाहिए. भले ही उसका पैकेज कम है क्योंकि उसका ब्रांड बहुत बड़ा है, राइट. तो कई बार पैकेज के ऊपर भी हमको डिसीजन नहीं लेना है, कई बार हमको रोल भी देखना है, प्रोफाइल भी देखनी है, उस कंपनी के बारे में भी समझ के जाना है, राइट. तो इस तरह से यू विल फाइंड लॉट ऑफ कंपनीज. टाटा AIG जैसे किसी ने अभी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, B.Tech के लिए, राइट. सो मैं आप लोगों को क्राइटेरिया बताऊंगा इसका, राइट. डोंट वरी अबाउट दैट. वन बाय वन आई विल कवर ऑल दीज पॉइंट्स. ठीक है. आफ्टर दैट यस, अब हम सेकंड पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस. तो आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट. पहले तो मैं सिर्फ को थोड़ा सा फीडबैक दे दो दैट इज इट गोइंग फाइन, is it going too fast, too slow, right? If you can just give me a quick feedback so that I will uh, maintain my speed. Okay, good. Thank you. All right. So basically, what I'm saying is that these are the companies which will be participating, right? ये कंपनीज मैंने अभी फाइनेंस की बताई है, राइट. इसी तरह से अभी हम लोग सेल्स की कंपनीज की भी बात करेंगे, दैट विच ऑल कंपनीज हैव पार्टिसिपेटेड इन सेल्स. बट बिफोर दैट लेट मी समराइज इट. द सिलेक्शन प्रोसेस ये सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो देखो आप लोग जब भी कैंपस की तैयारी स्टार्ट करोगे तो पहला थॉट क्या आना चाहिए आपको, कौन सी कंपनीज ने हमारे कॉलेज में पिछले साल पार्टिसिपेट करा था, उसी के चांसेस सबसे ज्यादा है. और कौन सी कंपनीज हमारी सिटी में दूसरे कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वहां पर आप ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हो. अगर आपके कॉलेज में वो कंपनीज नहीं आ पाती हैं तो फिर ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हो. तो पहले तो ये यूनिवर्स क्लियर हो गया आपको. अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन सी कंपनीज के क्या सिलेक्शन प्रोसेस है. जैसे कि सबसे पहली कंपनी RCCM जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, तो सबसे ज्यादा पैकेज लेकर आती है. ठीक है. तो इसमें दो पार्ट है. पहला पार्ट ये समझ लेते हैं कि इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है. ठीक है. सिलेक्शन क्राइटेरिया बेसिकली इनका है दैट दे वांट they as such they do not have any specific criteria on the percentages or on your graduation. इनका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है. इनका एक ही क्राइटेरिया है कि यू शुड बी एबल टू क्लियर देयर रिटर्न टेस्ट. उनका जो रिटर्न टेस्ट है वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है. तो अगर हम रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी के हो जाते हैं. लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 600 स्टूडेंट्स दे अपीयर्ड फॉर RCCM. इंदौर से अगर हम बात करते हैं तो करीब करीब 600 स्टूडेंट्स ने RCCM में पार्टिसिपेट किया था. और उसमें से ओनली 40 स्टूडेंट्स दे क्लियर देयर रिटर्न टेस्ट. केवल 40 लोगों ने उसका रिटर्न टेस्ट क्लियर किया था, क्योंकि रिटर्न टेस्ट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. 30 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स. 30 क्वेश्चन उन्होंने दिए थे और 30 मिनट का टाइम दिया था. और इसके पहले वाले साल की अगर मैं बात करता हूँ तो वो और टफ था. उस टाइम पे उन्होंने 20 मिनट दिए थे और आई थिंक 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन दिए थे, राइट. सो 20 मिनट्स का टेस्ट था.
और इस बार 30 मिनट्स का टेस्ट, तो ये जो टाइम बहुत कम मिलता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। क्योंकि आपको पता है जब भी आप पेपर ओपन करते हो तो 5 मिनट तो सेटल होने में ही लग जाते हैं, उसके बाद मुश्किल से 20-25 मिनट बचते हैं। तो इस टेस्ट के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है। सो क्विकली दो तीन बातें कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आरसीसीएम हेज फंड अकाउंटिंग के लिए आती है। हेज फंड और म्यूचुअल फंड, इनमें डिफरेंस होता है, राइट। ये मैं आपको एक होमवर्क की तरह इस बात को रखता हूँ कि आप फाइंड आउट करिए कि म्यूचुअल फंड और हेज फंड, इनमें क्या डिफरेंस होता है। इनके इंटरव्यू में भी ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है। ये पूछते हैं आपसे कि हेज फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंट है। बेसिकली इनका हेज फंड अकाउंटिंग वाला रोल है। और इसमें बेसिकली दे कवर रिटर्न टेस्ट। उस रिटर्न टेस्ट में दे कवर स्टॉक मार्केट रिलेटेड थिंग्स, दे कवर डेरिवेटिव्स रिलेटेड पार्ट, जीके, इंग्लिश, एलआर, मैथ्स, लगभग सभी कवर होता है। लेकिन जो सबसे टफ पार्ट है इसके अंदर वो है बेसिकली डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर तक नहीं पढ़ाया जाता है, ये सब्जेक्ट आता है थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में भी आता है तो उतना डीप में नहीं आता है जितना डीप में ये लोग पूछते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपको आरसीसीएम में जाना है, आप आरसीसीएम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो प्लीज प्लीज आज से ही डेरिवेटिव उठाइए और डेरिवेटिव की पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। क्लियर है आप लोगों को? इसका जो सिलेबस है वो डेफिनेटली बहुत टफ है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि कॉलेज में जो हम लोग की स्टडीज चल रही है उसके बेसिस पर ही कंपनी सिलेक्ट करेंगी, तो ऐसा नहीं है। कंपनीज आर सिलेक्टिंग बेस्ड ऑन प्रोफाइल्स। उनकी रिक्वायरमेंट है अगर डेरिवेटिव की, तो वो ये नहीं देखेंगे कि आपका वो सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में है, या आपके सिलेबस में भी है या नहीं है। आपसे आउट ऑफ सिलेबस भी चीजें आ सकती है। सो कैंपस एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जो हमने कॉलेज में पढ़ा है वही पूछेंगे। ऐसी बिल्कुल भी गलत फहमी में नहीं रहना है। क्लियर है आपको? सो स्टॉक मार्केट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेटिव रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ये बहुत डीप में पढ़ना है आपको। ठीक है। uh, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन जनरली ये लोग नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं। 2-3 साल पहले एक बार उन्होंने ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज करा था। इस बार उन्होंने रिटर्न टेस्ट ऑर्गेनाइज करा, उसमें से शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो स्टूडेंट्स क्लियर हुए उनके 3 राउंड हुए इंटरव्यू के। और तीनों ही राउंड डेफिनेटली टेक्निकल राउंड्स थे। टफ राउंड रहते हैं, बहुत ही टफ राउंड रहते हैं। आप में से कितने लोगों ने वीडियो देखा है जो हमने समर्थ के साथ करा था? समर्थ असाटी जो हमारे लास्ट बैच के स्टूडेंट है, जिनका आरसीसीएम में सिलेक्शन हुआ है। आप में से कितने लोगों ने वो वीडियो देखा है? आई हैव डिस्कस विद हिम रिगार्डिंग दैट प्रोसेस। एनीवन हैज सीन दैट? Okay, good, good, good. So yes, one of you has seen that. Okay, all right. तो आप जो हम लोग का YouTube चैनल है उस पर आप जाओगे तो यू विल फाइंड माय इंटरेक्शन विद समर्थ। ओके, उनके साथ मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन करा है कि आपने आरसीसीएम को क्रैक करा, क्या क्या चीजें आपने टाइम पे करी, क्या चीजें आपने स्टडी करी, क्या आपका इंटरव्यू प्रोसेस रहा है। वो बहुत जरूरी है। अगर आप आरसीसीएम टारगेट कर रहे हो तो उसको वीडियो को जरूर देखना एक बार। ठीक है। और हम लोगों ने जितना मटेरियल उनको प्रोवाइड करा था, डेफिनेटली वो भी यूजफुल था उनके लिए। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कुछ चीजें खुद से भी प्रिपेयर करी थी, वो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो वो वीडियो जरूर आप लोग को देखना चाहिए, मैं उसके लिंक अभी शेयर कर दूंगा। सो आरसीसीएम डेफिनेटली एक अच्छा प्रोफाइल लेकर आती है, पैकेज भी काफी अच्छा है। और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी उसमें काफी आपको मिलती है। अ, ये हायर पैकेजेस की बात कर रहे हैं हम लोग। सेकंड बात करते हैं कंपनीज जो कि है डेलॉइट, जिससे आपका कैंपस शुरू होगा, राइट। तो ये वो कंपनी है जिसको आपको जो सबसे पहले आपके सामने आने वाली है। ठीक है। और एक बड़ा ब्रांड है डेलॉइट। प्रोफाइल टैक्सेशन की है। आप लोगों ने टैक्सेशन पढ़ा है अभी? कितने लोगों ने टैक्सेशन पढ़ा है?
हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड टैक्सेशन ईदर इन योर ग्रेजुएशन और अभी ये कॉलेज में अगर कोई सब्जेक्ट रहा हो टैक्सेशन का? बी कॉमन टैक्सेशन, ऑल राइट। ओके, गुड गुड गुड। देयर आर लॉट ऑफ पीपल सो ग्रेट। देखो, टैक्सेशन रोल के लिए ही आती है। अब टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ये कौन से प्रोफाइल के लिए आती है? डायरेक्ट टैक्स के लिए आती है, इनडायरेक्ट के लिए आती है? एनीवन? डायरेक्ट टैक्स, वेरी गुड। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप सब लोग आप अपडेटेड हो, बहुत अच्छी बात है। और ये डायरेक्ट टैक्स के लिए आती है। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो आपको डायरेक्टली बियर करना होता है, लाइक इनकम टैक्स। तो ये बेसिकली इनकम टैक्स प्रोफाइल के लिए आती है। अभी इनकम टैक्स के लिए ब्रॉडली आपको बस इतना समझना है कि ये यूएस में जो टीम होती है, यूएस में जो डायरेक्ट टैक्स की टीम होती है, उसको ये सपोर्ट करती है, ये पर्टिकुलर टीम। मतलब आपका सिलेक्शन होगा, आपकी ज्वाइनिंग कहाँ आएगी? आपकी ज्वाइनिंग आएगी हैदराबाद में, राइट? और आपको बेसिकली हैदराबाद में ज्वाइनिंग आएगी, लेकिन आप सपोर्ट कहाँ करोगे? यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस टीम को आप सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं डेलॉयड यूएसआई, यूएस इंडिया टीम, राइट? इसका इसका सबसे लंबा सिलेक्शन प्रोसेस है, अगर इसके बारे में हम बात करें। अच्छा, इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी किसकी रहती है। तो दोज हु आर डन बीकॉम, बीबीए, राइट, उनको ही ये लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। मतलब नॉन कॉमर्स की अगर हम बात करें तो उनकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं आती यहाँ पे। जैसे किसी ने लिखा था कि हमने बीटेक करा है, या फिर किसी ने बीई करा है, या फिर किसी ने बीए करा है, राइट? तो वो लोग इसमें शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है सभी को? तो ये बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड या फिर बीबीए स्टूडेंट्स को ही हायर करती है। ठीक है। इसके बाद इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो होता है सबसे पहले वर्सन टेस्ट। आई एम श्योर आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्टडी करा होगा कि इसमें बेसिकली क्या चीजें रहती हैं। तो पहला है वर्सन टेस्ट। ठीक है। वर्सन टेस्ट बेसिकली आपकी इंग्लिश स्पीकिंग चेक करता है, क्योंकि आप बाहर के लोगों से बात करते हो, राइट? यू विल बी स्पीकिंग टॉकिंग टू पीपल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। सो द बेसिक थिंग जो हमको होनी चाहिए कि वो हमको उनकी बात समझ आनी चाहिए, उनका एक्सेंट समझ आना चाहिए। जो लोग इंग्लिश मूवीज देखते हैं उनको लिए तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन हम लोग इंग्लिश मूवीज भी जनरली कैप्शन ऑन करके देखते हैं, राइट? तो वो एक्सेंट हमको अगर समझ आ जाता है तो ये बेसिकली वर्सन टेस्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहला हो जाता है वर्सन टेस्ट। ठीक है, अभी मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चल रहा हूँ, एक एक चीज को बहुत डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ, बट ब्रॉडली आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। वर्सन टेस्ट होता है, वर्सन टेस्ट जैसे ही आप क्लियर करते हो एक लिंक आ जाती है, वो आती है बीपीटी टेस्ट की उसको बोलते हैं बिजनेस प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और उसके बाद आपको एक्सेल टेस्ट आ जाता है। लास्ट टाइम बीपीटी के साथ में उन्होंने एक्सेल भी इंक्लूड कर दिया था, राइट? इसके अंदर बेसिकली वो लोग बीपीटी में दे चेक योर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, दे चेक योर लॉजिकल रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स, लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद फिर आपके 3 राउंड होते हैं इंटरव्यूज के। क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पर आपके लिए डिफिकल्ट पार्ट क्या है? वर्सेंट। आपने अगर वर्सेंट क्लियर कर लिया, बिलीव मी, आपका 70% चांस बन जाएगा डेलोइट के अंदर। तो सबसे टफ क्या है यहाँ पे? वर्सेंट टेस्ट। सो वर्सेंट टेस्ट की तैयारी आज से ही चालू कर दो आप। और उसकी तैयारी चालू करने के लिए बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू गो टू यूट्यूब, यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे वर्सेंट टेस्ट टाइप करो, एंड यू विल फाइंड सम ऑफ दी लिंक्स रिलेटेड टू इट। तो ऐसे आप बेसिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, और इसको जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। आज आपको लग रहा होगा कि अभी तो मई चल रहा है, इतना जल्दी हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं। मई के बाद जून, जुलाई एंड अगस्त, कुछ भी नहीं बचता है। जून और जुलाई में आपकी आई थिंक इंटर्नशिप भी रह सकती है, हो सकता है कुछ एग्जाम्स भी आ सकती हैं, और भी आप यू नेवर नो, टाइम ऐसे ही निकलता है। तो मई के बाद इट्स जस्ट जून एंड जुलाई, एंड देन यू विल हैव अगस्त। ओके, जब ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया होगा कि अगर मेरा डेलोइट में सिलेक्शन हो गया तो फिर आरसीसीएम में तो मैं बैठ नहीं पाऊंगा। तो फिर डेलोइट में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? राइट, ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन होता है।
तो उसका आंसर ये है कि देखो ये तो एक रियलिटी है कि आप अगर एक पर्टिकुलर जॉब ले लोगे तो जनरली कॉलेजेस दूसरी कंपनीज में अलाउ नहीं करते, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस की हमने ये पॉलिसी देखी है। एक कंपनी मिलने के बाद वो दूसरी कंपनी में अलाउ नहीं करते। कुछ कॉलेजेस कर भी देते हैं, लेकिन डेलॉइट इस चक्कर में नहीं छोड़ना है आपको कि लाइक हमको फिर और किसी कंपनी में बैठने को नहीं मिलेगा। क्योंकि बिलीव मी, अच्छे अच्छी अपॉर्चुनिटीज ओनली 20%। आपके कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, राइट, उसमें से केवल 20% लोगों को हाई प्रोफाइल जॉब मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छा सिनेरियो हो गया तो 30%। इन अ बैच ऑफ 100 ओनली 30 आर गेटिंग हाई प्रोफाइल जॉब्स। उसके बाद जो नेक्स्ट रहता है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और फिर काफी सारे आप देखेंगे अनप्लेस्ड हो जाते हैं, अनप्लेस्ड रह जाते हैं। आपके भी सीनियर से अगर आप बात करोगे, बहुत सारे आप देखोगे अभी तक उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, कॉलेज खत्म हो गया है। वो पर्सनली स्पीकिंग वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सिनेरियो, क्योंकि ऑफ कैंपस जॉब ढूंढना इज लाइक वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स वर्क। तो ये जो अच्छे जॉब्स हैं, इनको अगर आपके सामने आ रहा है तो प्लीज 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 डोंट डोंट मिस इट आउट। इसलिए ये थॉट बिल्कुल मत लेके चलना कि इसमें ग्रोथ है या नहीं है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। आप कैंपस में एक जॉब पिक कर लो, और अगर आपको लग रहा है कि ये उतना अच्छा नहीं है, इससे भी बेटर कुछ मिल सकता है, तो ऑफ कैंपस उसके लिए अप्लाई करो ना। ऑफ कैंपस किसने रोका है? क्लियर है आप लोगों को? तो खैर करियर के टाइम पे हम सब डिस्कशन करेंगे, जब हम करियर रिलेटेड डिस्कशंस भी करते हैं क्लास में। तो डेलोइट का प्रोसेस क्लियर हो गया आपको, राइट? वर्सन टेस्ट है, उसके बाद एक्सेल, बीपीटी, एंड देन 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू। उसके बाद एस एन पी ग्लोबल के भी इसी टाइप के राउंड्स होते हैं। इस बार उन्होंने ग्रुप डिस्कशन भी ऑर्गेनाइज किया था, और एक रिटर्न टेस्ट था उनका, एक उनका बायोमेट्रिक टेस्ट होता है, वो थोड़ा सा और डिफरेंट होता है। अ, और इस तरह से यू विल फाइंड various companies, they are doing different kind of procedures. For example, Wipro, Blackstone, HDFC, CIC, they also conducted group discussions. तो इस पूरे डिस्कशन का जो क्रक्स है, वो क्रक्स ये है, दो तीन पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज्यादा शॉर्ट लिस्टिंग आती है, अगर हम फाइनेंस की बात करें। दूसरी बात ये है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में परसेंटेजेस मैटर करते हैं, तो फाइनेंस के स्टूडेंट के केस में डेफिनेटली मैटर करते हैं। कई सारी कंपनीज होती हैं जो एक क्राइटेरिया लेके चलती है। जैसे कि विप्रो की बात करें तो अभी तक का सबसे जो टफ क्राइटेरिया हमने लगाया था वो था 70%। जिनके 70% थ्रू आउट होने चाहिए, 10th 12th एंड उसके बाद, उन्हीं को उन्होंने शॉर्टलिस्ट करा। ठीक है। डेलोइट की अगर बात करें तो डेलोइट में केवल ये क्राइटेरिया था, परसेंटेजेस का क्राइटेरिया नहीं था। बट फिर भी मुझे पर्सनली लगता है कि 60% एक ब्रॉडली आप लेके चल सकते हो, कि अगर आपका 60% थ्रू आउट है, और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो आपको बहुत सारी शॉर्ट लिस्टिंग फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के अंदर आ जाएगी। जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, अब उनके लिए क्या है, तो उनके लिए भी देखो एस एन पी भी है, उनके लिए आरसीसीएम भी है, उनके लिए जैसे एक टाटा एआईजी है जो कि केवल इंजीनियर्स को हायर करती है। तो ऐसी कंपनीज है। कंपनीज कम हो जाएंगी अगर फाइनेंस के स्टूडेंट्स 100 में से 100 कंपनीज में शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं, तो जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे हिसाब से 100 में से 60 या 70 कंपनीज में शॉर्ट लिस्ट। तो 20 to 30% कंपनीज जो हैं वो कम हो जाएगी, 10 में से 2 या 3 कंपनीज में शायद आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो ये माइंड आपको पहले से ही बनाकर चलना है। अपने आप को मेंटली पहले ही प्रिपेयर कर लो कि ये चैलेंज हमको आने वाला है। ठीक है। अ, उसके अलावा टेस्ट की अगर बात करें तो टेस्ट में आप लोगों को एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेनी है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी हमने बात करी है। ऑल्दो अभी कैंपस प्रिपरेशंस के लिए हम लोग जब बात करेंगे तो आई टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल्स, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको थोड़े से अच्छे से डीप में पढ़ते हैं, राइट, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस स्लाइड के ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो इस स्लाइड के ऊपर। हम्म।
ऑल राइट। सो आरसीसीएम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, आरसीसीएम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने सारे ही फाइनेंस के जो स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स सभी को शॉर्टलिस्ट करा था। एवरीबडी अपीयर्ड फॉर देयर प्रोसेस, और केवल उन्होंने एक रिटर्न टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। उस रिटर्न टेस्ट में उन्होंने फिल्टर आउट कर लिए थे कैंडिडेट्स। दे लुक फॉर 10th 12th मार्क्स? नहीं नहीं नहीं, दे डिडंट लुक फॉर इट। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग, राइट। थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कंपनीज जो मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए जिन्होंने तैयारी करनी है। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपको जैसे कुछ एक एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, कोलगेट, एशियन पेंट्स, ठीक है, वीवो। तो एक बात आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली एक चीज सिंपल है। जो लोग सेल्स या मार्केटिंग से हैं उनके लिए देखो, सबसे पहली बात अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जनरली एलिजिबिलिटी में कई सारी कंपनीज हैं जो 50% या 55% इसके ऊपर ले लेती है। कुछ कंपनीज होती हैं जिनके पैकेजेस थोड़े हाई साइड पे जाते हैं, तो वो लोग फिर 60% एक्सपेक्ट करते हैं। और जब हम बात करते हैं 60% या 55%, तो थ्रू आउट की बात करते हैं। क्लियर है आप लोगों को? सेकंड पॉइंट ये है कि आ, आपको कौन से पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाना है, राइट। ये स्ट्रीम में जाने के लिए जो मैंने क्राइटेरियाज आपको बताया, आपको वो ध्यान में रखना है। कई लोग हायर पैकेज, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लाइक सम ऑफ माय स्टूडेंट्स गोज इनटू एडटेक कंपनीज। एडटेक कंपनीज की हालत आपको पता है आज की तारीख में एकदम खराब हो गई है। कोविड के टाइम पे उन्होंने काफी कुछ ऑनलाइन सब चीजें करी थी, लेकिन उसके बाद अभी मुश्किल हो गई। तो वहां से या तो कंपनियां बंद हो गई या फिर उनके ले ऑफ हो गए। तो आप लोगों को ये बात का ध्यान रखना है कि हम जिस कंपनी में जा रहे हैं केवल पैकेज के चक्कर में ना चले जाए, राइट। सो कई बहुत अट्रैक्टिव पैकेज लेकर आते हैं, लेकिन आपको एट द सेम टाइम देखना है कि वो प्रोडक्ट सेलेबल है या नहीं है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोकेशन हमको दे रहे हैं वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों बातें कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इतना ज्यादा डीप डीप में नहीं सोचते हैं, तो जनरली ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए सिलेक्शन ऑफ कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी एक बात जो आप लोगों के लिए जरूरी है वो ये है कि एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सभी के लिए जरूरी है। अभी मैं टेस्ट के ऊपर आऊंगा। तो बोथ फॉर फाइनेंस एंड मार्केटिंग एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी जैसे आपने सीयूईटी में करी थी या सीईटी में करी थी या सी मैट में करी थी या कैट के लिए करी थी, उतनी तैयारी सफिशिएंट है। इसका जो टफनेस लेवल होता है वो ज्यादा नहीं होता है। जनरली क्वेश्चंस इजी आते हैं एप्टीट्यूड के, तो आपको केवल उनको ब्रश अप करना है, राइट। क्लास में जो हम टेस्ट प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली उतने ही होते हैं सो दैट वो ब्रश अप हो जाए आपके कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट जनरली सभी ऑर्गेनाइज कराते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयारी रखनी है। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशंस की, तो जितने भी मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं और जितने भी एचआर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन लगभग लगभग सारी ही कंपनीज में फेस करना है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। जितने भी मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एचआर के स्टूडेंट्स हैं, राइट, आपको ग्रुप डिस्कशन लगभग सारी ही कंपनीज में फेस करना है। एट द सेम टाइम एक बात और कर लेते हैं यहाँ पे कि जो सिलेक्शन हो रहे हैं, राइट, जो पूरा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो ये भी मिक्स होने वाला है। पिछली बार बहुत सारे हमने देखे हैं कि केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें उन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस कर लिया, जीडी भी ऑनलाइन हो गया, इंटरव्यू भी ऑनलाइन हो गए। कुछ केसेस में जीडी ऑफलाइन हुआ, इंटरव्यू ऑनलाइन हो गया, या वाइस वर्सा हो गया, या दोनों ही प्रोसेस ऑफलाइन हो गई। तो ये मिक्स हो जाएगा इस बार। आपको दोनों के लिए रेडी रहना है। हम लोग भी जो क्लासेस करेंगे उन क्लासेस में आपको दोनों ही टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसमें आप जीडी ऑनलाइन भी फेस करोगे, ऑफलाइन भी फेस करोगे, क्योंकि आपको दोनों के लिए रेडी रहना है। तो आप तैयारी अगर कर रहे हो तो दोनों के लिए करना है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। जितने भी एचआर और मार्केटिंग के स्टूडेंट है, अपने जीडी के स्किल्स को ब्रश अप करो। जितने भी फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, 10 में से 7 कंपनीज जीडी ऑर्गेनाइज नहीं कर रही है,
केवल 3 कंपनीज ऑर्गेनाइज कर रही है, राइट? तो आप लोगों को जीडी में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। डेलॉइट जीडी ऑर्गेनाइज नहीं कर रही है, आरसीसीएम जीडी ऑर्गेनाइज नहीं कर रही है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, राइट? सो लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज आर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जीडी की तैयारी बिल्कुल नहीं करनी है। बात क्लियर होगी सभी को अबाउट ग्रुप डिस्कशंस? ठीक है, उसके बाद पैकेजेस की अगर बात करते हैं, तो पैकेजेस मार्केटिंग में समवेयर अराउंड 8 to 9, ये थोड़ा हायर साइड पे जाता है, 8 lakhs 9 lakhs इसमें। और इसमें जो बेस्ट कंपनीज होती हैं वो होती है कोलगेट, एशियन पेंट्स, देन बर्जर पेंट्स, ओके। फिर कुछ सीमेंट कंपनीज आती हैं, दे दे ऑफर यू वेरी वेल। तो आप लोगों को इसमें अगेन इंटरव्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। इसमें कोई ऐसा टेक्निकल टेस्ट तो होने वाला नहीं है, तो टेक्निकल टेस्ट को लेके परेशान नहीं होना है। मोस्टली यू नीड टू सिंपली हैव टू प्रिपेयर फॉर ग्रुप डिस्कशंस, एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड देन जो मैं आपको टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में अभी थोड़ा सा एक ब्रॉड आइडिया देता हूँ, उन टेक्निकल क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। और जहां तक सिलेक्शन, कंपनीज का सिलेक्शन करना है, इस बात का हमेशा याद ध्यान रखना आप कि प्रोडक्ट इजीली सेलेबल होना चाहिए। प्रोडक्ट डिफिकल्ट हुआ, आपकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो एट द सेम टाइम अगर हम एचआर की भी बात करते हैं, एचआर की स्पेशलाइजेशन, देखो एचआर में एक चैलेंज ये आता है कि नंबर ऑफ कंपनीज कम आती है, क्योंकि एचआर में ओपनिंग्स कंपेरेटिवली कम होती है, ठीक है? तो इसमें अब आपको अपने आप को दोनों तरह से रेडी रखना है। आपको ऑफ कैंपस के लिए भी तैयार रखना है और ऑन कैंपस के लिए भी तैयार रखना है। कैंपस में अगर कंपनीज आ गई, वेल एंड गुड। इसमें जनरली सबसे ज्यादा जो हायरिंग्स होती है वो बेसिकली सोर्सिंग डिपार्टमेंट में होती है, जहां पर आप कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हो, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर रोल है, इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। इसमें जनरली प्रोसेस आपको मिलेंगी, ग्रुप डिस्कशंस, देन सेकंड रिटर्न टेस्ट तो ऑब्वियसली सभी में रहता है, और उसके बाद इंटरव्यूज, ठीक है? इसमें कुछ कंपनीज हैं जो जनरली बहुत रेगुलरली पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन फिर भी लाइक आप एक मान के चल सकते हो कि देयर विल बी फ्यू कंपनीज दैट विल बी कमिंग इन। लेकिन आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि कंपेरेटिवली लेसर नंबर ऑफ कंपनीज पार्टिसिपेट। तो आपको अपना एक बैकअप ऑप्शन हमेशा क्रिएट करके रखना है। तो आई थिंक एचआर से केवल आप ही हो, प्राची। तो आप मेरे से इस बात को अलग से भी डिस्कस करो कि लाइक व्हाट शुड बी माय अप्रोच, ठीक है? तो आप सेशन के बाद यू कैन गिव मी अ कॉल। मैं अपना डायरेक्ट नंबर सभी के साथ शेयर कर लेता हूँ, जिसको भी कोई भी डाउट होता है, ठीक है? तो दिस इज माय डायरेक्ट नंबर, राइट? तो आप लोग मेरे से डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हमें कोई पर्सनल डाउट है, ओके? ऑल राइट, सो लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। ये जैसे मैंने एचआर में भी आपको ये चीजें लिखी है। once Deloitte come for knowledge management, they have taken HR people also. Ultratech has come for core HR profile. Yash Technologies come for core HR. GDP and aptitude test, ये बेसिकली इनका क्राइटेरिया होता है। बट स्टिल लाइक यू शुड कनेक्ट विथ मी, तो मैं आपको थोड़ा सा और सेपरेटली इसके बारे में एक्स्ट्रा गाइडेंस दे दूंगा। I have given NISM exam twice but didn't able to clear that. Can you please give some advice regarding this? देखो NISM के लिए एक अलग डिस्कशन करना होगा। आज का जो हमारा एजेंडा है वो मेनली कैंपस पर है। तो ये आप मेरे को सेपरेट कनेक्ट करो, मैं आपको बता दूंगा NISM के लिए क्या आपको खास तैयारी करनी है। व्हाट अबाउट डेटा एनालिटिक्स? डेटा एनालिटिक्स, देखो डेटा एनालिटिक्स के जो रोल्स होते हैं, अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि आईटी कंपनीज और फाइनेंस की कंपनीज, ये दोनों डेटा एनालिटिक्स के लोगों को हायर करती हैं, ठीक है? लेकिन इसमें अब आपको अगेन आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये नया फील्ड है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी कंपनीज जो रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रही है हमारे इसमें। उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार रखना है, ठीक है? नए फील्ड्स के अंदर नेचुरली पास्ट का डेटा बहुत कम है, वो डेटा धीरे धीरे करके बिल्डअप होगा। लेकिन फिर भी आप मेरे को एक बार अपना सिलेबस थोड़ा शेयर करना, उसमें से मैं आपको खास इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप थोड़ा डीप में पढ़ो। यहाँ पर मेनली आपकी कमांड ओवर सम ऑफ द टूल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको कौन से टूल्स आते हैं, आपको एक्सेल कितना अच्छा आता है, आपको पावर बीआई कितना अच्छा आता है, आपको कोई लैंग्वेज आती है क्या, वीबीए आता है क्या आपको। तो यहाँ पर बेसिकली इस चीज़ों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझसे आप सेपरेट कनेक्ट करिए। एमबीए फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप, मैं उसके ऊपर आता हूँ थोड़ा सा। हम लोग क्या क्या प्रोग्राम्स करते हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली इसके लिए कंपनीज आती हैं। जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, आप बोल सकते हो कि वो एक तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही काम कर रही हैं। उसके लिए भी आजकल हायरिंग्स काफी सारी होती है। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी कंपनीज आती हैं तो या आप किस में एलिजिबल हो, तो सारी ही जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, लाइक फ्लिपकार्ट हो गई, amazon हो गई, मिंत्रा हो गई, तो ये रिलायंस हो गया, तो ये सारी कंपनीज है जहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है। अब प्रोसेस को लेकर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक हम उस क्वेश्चंस को ले लेते हैं, अदरवाइज आई एम श्योर कि देखो इसमें क्वेश्चंस तो बहुत होंगे आपके, लेकिन क्योंकि हम लोगों के पास आज टाइम कंस्ट्रेंट भी है, आप लोगों को पूरा एक ब्रॉड ओवरव्यू भी लेना है। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चंस, आप मेरे से सेपरेटली मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो आप लोग। बट आई एम श्योर कि एक ब्रॉड क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कुछ मिसकंसेप्शंस को लेकर। ठीक है, मिसकंसेप्शंस और रियल लाइफ एग्जांपल्स, देखो जो गलतियां हैं, बड़ी गलतियां, वो आपको अवॉइड करनी है। आज आप लोग अपना संडे का बेशकीमती टाइम निकाल कर अटेंड कर रहे हो, तो आपका ये हम लोग केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लाइक जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसके लिए भी कर रहे हैं कोई बड़ी गलती अगर हम कर सकते हैं फ्यूचर में उसको हम अवॉइड करें। और एक गलती आप समझोगे आपके 2-3 महीने 4 महीने कितना भी खराब कर सकती है। तो बेटर है कि हम लोग उन बातों को समझें कि क्या लोग गलती कर जाते हैं। ठीक है, और कई बार तो एक गलती कुड कॉस्ट यू लाइक योर करियर ऑल्सो, ऐसी भी गलतियां होती है। ठीक है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझना। अ, तो आज जो आप लोग के माइंड में चीजें चल रही हैं, पहली चीज चल रही है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप। आज आप सभी लोग मेरे ख्याल से इंटर्नशिप सर्च कर रहे हो, या कई लोगों की हो चुकी होगी, स्टार्ट भी हो सकता है, स्टार्ट कर ली हो उन्होंने। तो एक इंटर्नशिप को लेकर सवाल होगा आपके दिमाग में, एक सवाल होगा आपके दिमाग में सर्टिफिकेशंस को लेके, क्योंकि हर कोई सर्टिफिकेशन कर रहा है, तो हम लोगों को भी सर्टिफिकेशन करना है, राइट, ये भी एक क्वेश्चन होगा। और बाकी फिर कुछ रेज्यूमे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। तो रेज्यूमे किस टाइप से शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ पहले। देखो ये पर्टिकुलर कैंडिडेट है, इन्होंने क्या क्या क्वालिफिकेशंस लिए थे। इन्होंने एक एक्सेल का क्रैश कोर्स किया था, और उसके बाद उन्होंने कुछ तो स्टॉक मार्केट का किया था, फिर गूगल डेटा स्टूडियो किया था, और ये काउंसिल मेंबर रहे थे, फिर विनर भी रहे थे कहीं के, और पार्टिसिपेटेड इन यूटीडी चेस कंपटीशन। ठीक है, अ, ये पर्सन ने कोई भी इंटर्नशिप नहीं करी थी, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ बस। ये हमारे ही स्टूडेंट रहे हैं, इन्होंने कोई भी इंटर्नशिप नहीं करी थी। क्लियर है आप लोगों को? लेकिन इनका डेलोइट में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, दिस इज वन एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिनका एसएनपी में सिलेक्शन हो गया। इन्होंने बैंकिंग सेल्स के अंदर इंटर्नशिप करी थी आईसीआईसीआई बैंक में, और कुछ तो उन्होंने एक जन कल्याण मल्टीपर्पज एजुकेशन सोसाइटी में कुछ काम किया था, राइट। इनका सिलेक्शन कहाँ हुआ? एसएनपी ग्लोबल। थर्ड, ये और स्पेशल केस है, ये फाइनेंस के हैं लेकिन इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया था, राइट। और कुछ तो उन्होंने इंजीनियरिंग डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कुछ काम किया था, और एक स्टॉक मार्केट का एनालिसिस किया था, राइट। इनका क्या हो गया सिलेक्शन? डेलॉयट यूएसए। तो इस इन तीन एग्जांपल से मैं आपको दो तीन बातें क्लियर कर देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि आज आप लोग जितने परेशान हो इंटर्नशिप को लेके, उतना परेशान मत हो। इंटर्नशिप और जॉब का कोई कनेक्शन नहीं, और हो भी नहीं सकता है। आज डेलोइट टैक्सेशन के लिए आती है,
और आप कोई इंटर्नशिप करते हो सपोज फाइनेंस के अंदर, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है क्या कि हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा, या उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो केवल टैक्सेशन में काम कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लो आप लोग कि इंटर्नशिप को लेके उतना परेशान मत हो जितना परेशान हो। ठीक है। ये तीन एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए। किसी ने इंटर्नशिप करी है, किसी ने नहीं करी है, किसी ने रेलेवेंट इंटर्नशिप करी है, किसी ने नहीं करी है, लेकिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो सिलेक्शन केवल और केवल जो कंपनीज का सिलेक्शन प्रोसेस है उस प्रोसेस के बेसिस पे होता है, ना कि इंटर्नशिप के बेसिस पे या सर्टिफिकेशंस के बेसिस पे। वो चाहते हैं कि आप रिटर्न टेस्ट क्लियर करो, वो चाहते हैं कि आप इंटरव्यू क्रैक करो, वो जीडी क्रैक करो। तो आप इन चीजों पे फोकस करो, रादर देन कि आप ये सोचो कि हम ऐसा कोई सर्टिफिकेशन कर लें जिसके बेसिस पे वो हमको सिलेक्ट कर लें। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उनकी प्रोसेस आपको क्रैक करनी है। इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका ये मतलब है क्या कि मुझे सर्टिफिकेशन और इंटर्नशिप पे ध्यान ही नहीं देना है? तो ऐसा भी नहीं है। आपको सर्टिफिकेशन और इंटर्नशिप पे ध्यान देना है, लेकिन आप जिस लेवल पे सोच रहे हो कि सर्टिफिकेशन और इंटर्नशिप के बेसिस पे ही मेरा सिलेक्शन होगा, वो वैसा नहीं है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो जॉब केवल सिलेक्शन प्रोसेस क्रैक करके मिलता है, ना कि इनके बेसिस पे। लेकिन ये आपको लेना है, सर्टिफिकेशंस भी लेना है और इंटर्नशिप भी लेना है। एक डिसेंट लेवल की कंपनीज को टारगेट करो। ठीक है, मैंने एक बेसिकली एक स्लाइड भी बनाई है, और वो स्लाइड इसलिए बनाई है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए बेसिकली किसकी किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है। आई थिंक इन द अपकमिंग स्लाइड इट विल कम। तो ठीक है, उसके पहले पहले इस बात को हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि कोई डाउट है कि आपको रिलेटेड टू इंटर्नशिप एंड सर्टिफिकेशंस? कुछ भी डाउट हो, आप सोच रहे हो कुछ करना हो आपको, कि इस पर्टिकुलर जगह से करें या वहां से करें, या कौन सा सर्टिफिकेट करें ना करें, कोई भी सवाल हो तो प्लीज डू आस्क वेरी फ्रैंकली। और ऐसा मत सोचो कि बाकी लोग क्या सोचेंगे। सभी के दिमाग में एक ही सवाल है। क्लास में होता है ना ऐसा कि हर कोई सोचता है कि ये सवाल मेरे को पूछना है, लेकिन कोई भी नहीं पूछता है। तो वैसा ना होना चाहिए आपके साथ। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछो आप। 12th इन पीसीएम देन बीकॉम, आई विल कंसिडर कॉमर्स और नॉट। नहीं, कॉमर्स का मतलब है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका कॉमर्स में, राइट? तो आपने बीकॉम ग्रेजुएशन कॉमर्स में करा है तो कंसिडर होगा आपका। सर्टिफिकेशन कोर्स फॉर फाइनेंस, देखो फाइनेंस में बहुत तरह के सर्टिफिकेशंस होते हैं। जो सबसे कॉमन चलता है वो चलता है एनआईएसएम, राइट? तो वो एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, और अगर आप वहां से करते हो तो नेचुरली, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से करोगे तो फिर भी ठीक है। अननोन इंस्टीट्यूट से कर रहे हो आप, जिसको कोई भी नहीं जानता है, तो डेफिनेटली उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अ, लेकिन एट द सेम टाइम कई ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे, जैसे हम लोगों का इंस्टीट्यूट है, थोड़ा नोन है, राइट? एटलीस्ट इन सम सिटीज इट इज नोन। हम लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग का सर्टिफिकेट कराते हैं, राइट? तो फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत सारे इंस्टीट्यूट कराते हैं, लेकिन आपका पर्पस क्या है? कैंपस क्रैक करना, कंपनीज का सिलेक्शन प्रोसेस क्रैक करना। तो उतना ही आपको करना है जितना उसके लिए जरूरी है। आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग का साइंटिस्ट नहीं बनना है, राइट? कई लोग मैंने देखा है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग ही करते रहते हैं पूरे टाइम। बट ये याद रखना है आपको कि फाइनेंशियल मॉडलिंग तो एक प्रोफाइल है, उसके अलावा और भी ढेर सारी प्रोफाइल्स हैं। तो एक लिमिटेड टाइम ही देना है आपको अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग भी कर रहे हो। तो एनआईएसएम इज वन, फाइनेंशियल मॉडलिंग इज वन, एक्सेल इज अनदर वन। ये सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं ये अच्छे हैं। जो लोग मार्केटिंग में है, राइट, मार्केटिंग के लोग हैं, उन लोगों को मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट, आपकी इच्छा हो तो आप लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जॉब डिजिटल मार्केटिंग के नहीं मिल रहे हैं, ये बात भी याद रखना है आपको। आपके कैंपस में जो कंपनी आने वाली है वो सब सेल्स की आने वाली है। तो एक आपको स्किल सेट बढ़ाना है आपका, तो स्किल सेट बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट लो। लेकिन इस बात को याद रखो कि ये इससे मेरा केवल स्किल सेट बढ़ रहा है, ये मेरा यूज में कुछ भी नहीं आने वाला है मेरे जॉब के लिए। जॉब के लिए दे जस्ट वांटेड टू हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, और खास तौर पे जो सेल्स के लोग हैं, मार्केटिंग के लोग हैं,
मतलब मैं तो मार्केटिंग बोलता ही नहीं हूँ, एमबीए इन सेल्स ही बोलता हूँ मैं तो, क्योंकि जॉब ही सेल्स की आती है, तो एमबीए इन मार्केटिंग बोल के क्या फायदा है, राइट। तो जो लोग एमबीए इन सेल्स कर रहे हैं, राइट, उन लोगों को तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि प्लीज सेल्स का एक्सपीरियंस लो आप। वेट मत करो इंटर्नशिप का, कि लाइक इंटर्नशिप स्टार्ट होगी तो ही हम सेल्स का एक्सपोजर लेंगे। आज ही ज्वाइन कर लो कोई भी काम, वो आपको पार्ट टाइम भी अलाउ कर देंगे। आप बोलोगे मुझे सेल्स का एक्सपोजर चाहिए, तो ये आप कितने भी सर्टिफिकेशन कर लो, वो किसी भी तरीके से आपको काम नहीं आएंगे। लेकिन ये जो आप करोगे, कहीं पे भी आपने थोड़ा सा पार्ट टाइम सेल्स का जॉब ले लिया और आपको नहीं मिलता हो, तो आप मेरे से बात करो, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है। तो सेल्स का काम आप करो, दैट विल बी 10 टाइम्स बिगर देन अ सर्टिफिकेशन दैट यू डू फॉर योर कैंपस, एज सिंपल एज दैट। तो सेल्स वालों के लिए तो मेरा क्लियर है, कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अपनी इच्छा हो, अपना स्किल सेट बढ़ाना हो, तो आप शायद डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। वो भी तब जब आपके माइंड में ये हो कि हम डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जाने की सोच रहे हैं, तो उसके अलावा कोई मतलब नहीं। ठीक है। अ, जो लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हैं, अगेन आप लोगों के लिए भी फाइनेंशियल मॉडलिंग बेटर रहेगा। फाइनेंशियल मॉडलिंग का आप सर्टिफिकेट करोगे तो मार्केटिंग के लिए कौन सी कंपनी में इंटर्नशिप करें, बहुत सारी कंपनीज हैं, राइट, जो लोग इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं अभी। ठीक है। तो आप लोगों के स्पेसिफिक कोई भी डाउट हो, आप लोग इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, आपको कोई सर्टिफिकेट करना है, आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर दो। अच्छी बात है कि अभी इतने सारे स्टूडेंट्स अवेयर नहीं हुए हैं। ऑल्दो ये हमारा सेकंड सेमिनार है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। लेकिन आज के सेमिनार में डेफिनेटली आप लिमिटेड लोग हो, तो आपके पास एक एडवांटेज है कि आप मेरे को डायरेक्टली भी कनेक्ट करोगे, तो आई आई वोंट हैव एनी प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो फिर हमको कॉल्स लेने में दिक्कत आती है। कैन अ पर्सन स्विच फ्रॉम सेल्स टू फाइनेंस आफ्टर सम एक्सपीरियंस इन सेल्स? नहीं नहीं नहीं, ये पॉसिबल मुश्किल से होता है। सेल्स से फाइनेंस में आना मुश्किल होता है। और फाइनेंस से सेल्स में आने में भी मुश्किल होती है। मतलब स्ट्रीम चेंज करना डेफिनेटली एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है। तो अगर आप सेल्स में हो, और अगर फिर भी आप सोच रहे हो सेल्स से फाइनेंस में शिफ्ट करने का, तो पहले 6 महीने या 1 साल के अंदर स्विच कर लो आप। उसके बियॉन्ड जाओगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। ऑल राइट, सो ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को इंटर्नशिप से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अ, अब क्योंकि हम लोग बिल्कुल हमारा जो सेशन है उसके लास्ट सेक्शन पर आ गए, लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन में हम लोग कैंपस के एक्चुअल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और जो लोग आंसर्स देंगे उन लोगों के लिए प्राइजेस हैं। ये एक हमारा हर सेशन का पॉइंट होता है। एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चंस, एंड दोज हु विल आंसर दीज क्वेश्चंस, राइट, दे विल गेट द प्राइजेस। ठीक है, उनको प्राइजेस मिलेंगे। तो आप लोग कोशिश करें अपना बेस्ट परफॉर्म करने का। प्लीज डिस्क्लोज दीज राउंड्स। विच राउंड्स यू आर टॉकिंग अबाउट? Okay, yes, I'll be talking about these rounds, right? Uh, so जनरली सबसे पहले रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा। कई बार आजकल कंपनीज वीडियो रेज्यूमे भी बनाती है। तो पहली बात तो ये है कि जिनके भी रेज्यूमे नहीं बने हैं, राइट, आप रेज्यूमे बना लीजिए, एंड यू कैन सेंड इट टू अस आल्सो फॉर रिव्यू। या फिर अगर आपके पास रिज्यूम फॉर्मेट नहीं है, तो आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप या फिर कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया होगा, उसमें हम रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। तो विल पोस्ट दैट एज वेल, राइट। तो आप लोग अपना रेज्यूमे फॉर्मेट कंप्लीट कर लो, और एटलीस्ट इंटर्नशिप के लिए बना लो। और अगर आपने पास फॉर्मेट नहीं है तो हमें मैसेज कर दो, विल सेंड यू दी फॉर्मेट फॉर दैट। कई कंपनीज वीडियो रेज्यूमे मांगती है, लेकिन अभी वो कम है कंपेरेटिवली। फिर भी वीडियो रेज्यूमे भी रेडी रहे तो अच्छा है। रेज्यूमे की शॉर्टलिस्टिंग के बारे में हमने बात कर ली है। मार्केटिंग वालों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग, एचआर, आप लोगों की जनरली सभी लोगों की शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है। ऐसा उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। लेकिन कोई बड़ी कंपनीज की अगर बात करें तो फिर वो 60%, 65% ऐसा क्राइटेरिया रख लेती है, राइट। लेकिन फिर भी मेरा एक मानना ये है कि 60% जिन लोगों के नहीं है, उनको कुछ कुछ चैलेंजेस मैंने फेस करते हुए देखा है।
किसी किसी के क्वेश्चन होते हैं कि सर मेरा 59.2% है, तो मैं क्या उसको राउंड ऑफ करके 60 कर दूं क्या? तो अब यार ये ऐसे क्वेश्चन जो है, धर्म संकट वाले क्वेश्चन, ये तो मैं भी आंसर नहीं कर पाता, है ना? तो ये तो अब आपको जो आप सोच सकते हो बस वही है उसका फाइनल। लेकिन 60%, राइट? पिछली बार में मुझे याद आ रहा है कि एक स्टूडेंट के कुछ ऐसे परसेंटेजेस थे, उनको शॉर्ट लिस्टिंग में दिक्कत आई थी। तो ये एक थॉट होना चाहिए आपके दिमाग में कि 60% से कम है तो हम हमारे ऑल्टरनेट ऑप्शंस लेके चलें, कैंपस के ऊपर डिपेंडेंट भी रहें, बट ऑल्टरनेट ऑप्शन भी हम लोग लेके चलें थ्रू आउट। व्हेन आई एम सेइंग 60%, तो थ्रू आउट मतलब वो 10th भी हो गया, 12th भी हो गया, ग्रेजुएशन भी हो गया, है ना? उसके बाद आगे चलते हैं राउंड 1। तो राउंड 1 हर कंपनी रिटर्न टेस्ट ऑर्गेनाइज कराती है। जैसे हमने डेलोइट के बारे में बात करी तो वर्सेंट, आरसीसीएम के बारे में बात करी है तो उनका रिटर्न टेस्ट, जिसमें वो लोग डेरिवेटिव्स कवर करते हैं। हम लोग अब आने वाले दिनों में एक फेस टू फेस वेब सेमिनार भी प्लान करने वाले हैं। ये तो हमारा ऑनलाइन सेमिनार है, लेकिन शायद अगले ही संडे हम लोग एक फेस टू फेस सेमिनार करेंगे जिसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट डिटेल इन डिटेल अबाउट द प्रोसेस ऑफ ईच ऑफ दीज कंपनीज, राइट? डेलोइट की डिटेल में प्रोसेस आज मैंने आपको बस बता दिया 1% में क्या होता है, लेकिन हम उसमें डिटेल में बात करेंगे। और अच्छी बात यह है कि हम लोग इंदौर में ही प्रेजेंट है, ठीक है? तो आप लोगों को लिए बड़ा इजी हो जाएगा टू कनेक्ट। वी हैव आवर सेंटर हियर इन विजयनगर, तो आप लोग फिजिकल मिलोगे तो भी एक और क्लैरिटी मिल सकती है। मोस्ट लाइकली विल बी डूइंग इट इन नेक्स्ट वीक। ओके, सो रिटर्न टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट इज वर्सेंट। उसके बाद कई कंपनीज पर्सनालिटी टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है, कई साइकोमेट्रिक करती है, कई पायोमेट्रिक टेस्ट करती है, एप्टीट्यूड टेस्ट करती है। सबसे कॉमन है एप्टीट्यूड टेस्ट, ये लगभग लगभग सारी ही कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं। सेल्स के जो स्टूडेंट है उनको याद रखना है कि सिचुएशनल टेस्ट ये भी होता है और साइकोमेट्रिक टेस्ट ये भी होता है उनके केस में। इसके भी मैं आपको कुछ सैंपल फॉर्मेट प्रोवाइड करूंगा। सबसे ज्यादा टेस्ट जो है वो फाइनेंस के स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ते हैं, क्योंकि उनके केस में सब्जेक्ट रिलेटेड टेस्ट आ जाते हैं, एक्सेल भी आ जाता है, अकाउंटिंग भी आ जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आ जाता है, स्टॉक मार्केट भी आ जाता है। तो सबसे जो डिफिकल्ट होता है वो फाइनेंस के स्टूडेंट के लिए होता है। लेकिन फाइनेंस के स्टूडेंट के लिए अच्छी बात यह है कि जो ग्रुप डिस्कशन है वो सारी कंपनीज नहीं करती हैं, लेकिन सेल्स वालों के लिए ये बात ध्यान रखना है कि 100% कंपनीज जीडीज करवा रही है। इसका मतलब ये है कि अच्छे से तैयारी करो, अभी से जीडी की तैयारी करो। कई लोग मैंने देखा है कि फंबल कर जाते हैं, बोलते ही नहीं कुछ भी। तो सेल्स इज ऑल अबाउट स्पीकिंग, तो आप अगर नहीं बोल पाओगे जीडी के अंदर तो डिफिकल्टी आने वाली है। जीडी में अच्छा ध्यान देना है, राइट? आफ्टर दैट इट विल बी टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में फाइनेंस के स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं तो टैक्सेशन, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 3 सब्जेक्ट हैं जो आपको कैंपस में काम आएंगे। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट काम नहीं आने वाला है। वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, टैक्सेशन, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और थोड़ा बहुत कॉस्टिंग। इनके अलावा कोई सब्जेक्ट काम में नहीं आने वाला है। इसलिए अगर आप इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो मेरा सजेशन है कि केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। अच्छे से पढ़ना है तो ये सब्जेक्ट्स पढ़ो, क्योंकि ये आपको रियल लाइफ में भी काम आएंगे और कैंपस में भी काम आएंगे, ठीक है? जहां तक मार्केटिंग के स्टूडेंट्स का सवाल है, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के करीब 50 क्वेश्चन हैं, राइट? अगर वो 50 क्वेश्चन के आपने आंसर्स अच्छे से तैयार कर लिए तो सिलेबस से आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के कुछ 50 क्वेश्चंस फिक्स हैं, उनमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि वो आपका बिहेवियरल पर्सनैलिटी और आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, रादर देन कि आपको थियोरेटिकली कितना नॉलेज, ठीक है? तो ध्यान दोनों स्ट्रीम्स को क्लियर हो गया। और सेम गोज फॉर एचआर ऑल्सो। एचआर और मार्केटिंग ऐसे फील्ड है जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन थियोरेटिकल। फाइनेंस ऐसा फील्ड है जिसमें थियोरेटिकली यू शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। प्रैक्टिकल ठीक है, मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन थियोरेटिकली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? इसलिए फाइनेंस में सर्टिफिकेशन का थोड़ा इंपॉर्टेंस है, और एचआर और मार्केटिंग सर्टिफिकेशन का बहुत ही कम इंपॉर्टेंस है, ठीक है? उसके बाद एक एचआर इंटरव्यू होता है और उसके बाद फाइनल राउंड होता है, राइट? दीज आर दी राउंड्स दैट कंपनीज डू कंडक्ट, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को अभी मैंने बस बता दिया है आपको कि आपको इनको सबको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, इन सबको आपको वापस से रिवाइज करना है। ये सब इसका सिलेबस है, ठीक है?
वर्सेंट टेस्ट होता है, एक्सेल टेस्ट होता है। इसकी इन प्रोसेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिचुएशनल टेस्ट, राइट। क्विकली आई टेल यू अबाउट हमारा जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, राइट। जैसा कि ये स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोग करीब 30 डेज में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, 30 to 35 डेज। और ये जो 35 डेज है, इसमें हम लोग अराउंड 1.5 आवर्स की क्लासेस करते हैं, राइट, 1.5 to 2 आवर्स की क्लासेस। दिस इज this will cover interviews, this will cover group discussions, this will cover all the tests, and it will cover all your career related queries, right? So it is a purely directed towards the your campus, so all about campus, right? जितने भी सवाल आपके होते हैं कैंपस से रिलेटेड, हम सारे ही इसमें कवर कर लेते हैं, ठीक है। प्राइमरीली इसमें अगर हम लोग बात करें तो करियर गाइडेंस रिलेटेड पॉइंट्स, टेक्निकल इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस, टेस्ट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्लेसमेंट असिस्टेंस, राइट। कई बार स्टूडेंट्स को ये होता है कि कैंपस के अंदर अगर कुछ अच्छा नहीं मिला तो फिर हमारा क्या होगा। तो हम प्लेसमेंट असिस्टेंस भी आपको प्रोवाइड करते हैं यूजिंग आवर एग्जिस्टिंग नेटवर्क, राइट। सो ये एक आपके लिए बड़ा सपोर्ट हो जाता है। ये 35 डेज के अलावा हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्सेंट ऑलमोस्ट 5 टेस्ट ऑफ वर्सेंट, 3 टेस्ट ऑफ फॉर आरसीसीएम, 10 एप्टीट्यूड टेस्ट, 3 अकाउंटिंग टेस्ट, 3 एक्सेल टेस्ट, मिनिमम 5 राउंड ऑफ ग्रुप डिस्कशंस। मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी है। ग्रुप डिस्कशन एचआर के स्टूडेंट्स के लिए बढ़ जाएगा ये, राइट। मॉक इंटरव्यूज रहते हैं, रिफ्रेशर सेशंस होते हैं हर कंपनी के पहले, देयर विल बी रिफ्रेशर सेशंस। कंपनी गाइडेंस, राइट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम लोगों के पहले प्लेस हो चुके हैं, वी कॉल अप देम इन दी क्लासरूम ऑल्सो, और वो लोग भी आपसे इंटरेक्ट करते हैं टू टेल यू दैट व्हाट आर द राइट थिंग्स, व्हाट आर द नॉट सो राइट थिंग्स दे डिड, सो दैट आपको एक प्रैक्टिकल आइडिया मिल जाता है कि ओके, हमको क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या सही चीजें हम लोग कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द डिटेल्स, राइट। डे वाइज सेशंस, इस तरह से हम लोगों के डिटेल्स। तो ब्रॉडली मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे देता हूँ कि लाइक हम लोग रेज्यूमे से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन कवर करते हैं। आफ्टर दैट फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग अकाउंटिंग सेशन, जो लोग वीक है अकाउंटिंग में, जो लोग को लगता है कि हमारा इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर नहीं रहा है, राइट, उनके लिए अकाउंटिंग सेशंस अलग होते हैं। फिर डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के सेशन होंगे, फिर आपका वैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर क्लास होगी, रेशियो एनालिसिस पे होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग पे होगा। सबसे ज्यादा फोकस हम लोग डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस पे करते हैं, क्योंकि आरसीसीएम में यही चीजें पूछी जाती है, तो पूरी टेक्निकल प्रिपरेशन। तो एक चीज जो हम लोग खास तौर पे करते हैं कि लाइक हम लोग एक कोई इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि व्हाट इज अबाउट कैंपस, कैंपस इज अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग। नहीं नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग तो एक बहुत ही बेसिक पार्ट है उसका। ना हम जीडीपी इंस्टीट्यूट है, वी आर अ कैंपस प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट, राइट, विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव थिंग। तो केवल आपको सॉफ्ट स्किल्स में स्ट्रांग नहीं होना है, आपको टेक्निकल स्किल्स में भी स्ट्रांग होना है। यू शुड नो द सब्जेक्ट वेरी वेल, राइट। इसलिए वी विल डू द हार्डकोर टेक्निकल ट्रेनिंग ऑन डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, बॉन्ड्स, स्वैप, राइट। ये जितने क्वेश्चंस आरसीसीएम में पूछे जाते हैं, उसके लिए हम लोग काफी टाइम स्पेंड करते हैं। डेलोइट के लिए अलग से प्रोसेस होती है पूरी, एक्सेल के लिए अलग क्लासेस होती हैं, एचआर इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन, जीके एंड ऑल दिस टेस्ट। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन रहती है, ऑलमोस्ट 30 to 35 डेज की। और सेपरेट टेस्ट आर कंडक्टेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर, राइट। सो ये हमारा पूरा प्रोग्राम रहता है। अभी हम लोग इसको किस मोड में करने वाले हैं, ये मोड डेफिनेटली स्टूडेंट्स के प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। हम लोग इंस्टीट्यूट इंदौर में है, तो स्टूडेंट्स अगर चाहें तो ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, और हाइब्रिड मॉडल में भी चाहें तो वैसे भी अटेंड कर सकते हैं। सो ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल विद देम। Right. So this was about our training program. At the same time, we have one program called as internship assistance. जिन लोगों को internship search करने में प्रॉब्लम आ रही है, उन लोगों को हम लोग internship assistance भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको उसके डिटेल्स भी आपके व्हाट्सएप नंबर पे या फिर ग्रुप्स में अपडेटेड होते चले जाएंगे। तो आपको अगर इंटर्नशिप सर्च करने में कोई भी इशू आता है तो आप भी सोच सकते हो। At the same time, we have a course on financial modeling. We have a course on
these kind of certifications, so आप उसको भी देख सकते हो, राइट. सो ये प्रोग्राम के बारे में था. अब लेट्स कम टू द फाइनल सेशन, दैट इज बेसिकली क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कशन. ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ये ही अज्यूम करना है कि ये बेसिकली इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है, तो आपको अपना माइक अनम्यूट करके इसको आंसर करना है. चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, आपको अनम्यूट करना है अपना माइक और फिर आंसर करना है. ठीक है, तो लेट मी आस्क यू क्वेश्चन और आप उसको आंसर करें. जो भी सही आंसर देते हैं वो दे विल बी गेट द प्राइज. या ओके, सो my question to you is that what is the difference between depreciation and amortization? Sir, Depreciation. sir, depreciation is on fixed assets and amortization is on intangible assets. All right. And depreciation is on tangible assets. All right. Okay, good. Okay, great. So, good job, Nandini. So, well done. Big round of applause for Nandini for giving a quick answer. Interview is all about giving spontaneous answers, thinking fast also, right? So, this is the right answer. Basically, depreciation is charged on the tangible assets and amortization on intangible assets, right? uh, what how much is the corporate tax in India? India में corporate tax कितना है? So 25%. Two, sir. Domestic companies corporate tax and foreign company corporate tax. There is a separate, there is a difference in that you are saying. 25%. Okay. So 25% above 400 crores, 30% and otherwise 40%, sir. For previous year 2020 to 2021. 40%. Sir, for otherwise. What do you mean by otherwise? So 25%. All right. Just give me a second. Sir, abhi right now there is 30%. Say if total turnover of previous year 2020 to 2021 is up to 400 crores, so then 25%. All right. So we'll take the right answer for this. All right. So basically देखो, इसका जो right answer है वो अभी आप लोगों ने जो दिया है वो ज्यादा बेटर आंसर है. 400 करोड़ के ऊपर की कंपनीज के ऊपर टैक्स अलग है, 400 करोड़ के नीचे जो कंपनीज हैं उसके ऊपर अलग है. उसमें बेसिकली जो 400 करोड़ के नीचे जो कंपनीज है उसमें भी दो ऑप्शन है. दैट इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर exemptions, so it will be 25 if you are not opting for exemption it is 25%, if you are opting for it then it is 30%. 40% वाला जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है. ठीक है, और कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर जो नई कंपनीज है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में उनके ऊपर 17%. तो मेरा सवाल मतलब आई अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर शायद जवाब जो था आप लोगों ने गूगल पे भी सर्च करा होगा, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है. ठीक है, टैक्सेशन से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो वन इज डेफिनेटली रिलेटेड टू टैक्सेशन. ठीक है, और लेते हैं इसमें what is if any one of you knows how do you compute cost of equity? How do you compute cost of equity? Anyone? गूगल नहीं करना है बस आपको, क्योंकि मैं आपको पता चल जाएगा अगर आपने गूगल करा है तो. जिसको पता है वो ही आंसर करिए. हाँ बोलिए ऋषभ. ऑल राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटा? बीटा का क्या मतलब होता है?
Sir, volatility in the prices. Volatility in the prices of Um, Sir, the in the prices of share prices of a company. Okay, all right, good try. But beta is basically the riskiness of any particular share in compared to market, right? तो बेसिकली मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तो मैंने बताया आप लोगों की फाइनेंस के स्टूडेंट्स को थियोरेटिकली ज्यादा प्रिपरेशन करनी है। तो थियोरेटिकल प्रिपरेशन में आपको यही प्रिपेयर करना है। फाइनेंस के बेसिक क्वेश्चन है, बीटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मेथड ऑफ वैल्यूएशन, डेरिवेटिव्स, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का क्या मतलब होता है? कॉल और पुट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एनीवन? Sir, when we take position for price to go upwards, then it is a call option. And if we take to take the price uh, lower than the strike price, lower than the Nifty prices, then it's a put option. ऑलराइट। तो देखो, आधा आंसर सही है आपका। कॉल ऑप्शन तब लेते हो आप जब मार्केट इज बुलिश, एंड पुट ऑप्शन तब लेते हो जब मार्केट इज बियरिश। तो प्लीज अगेन अंडरस्टैंड दैट ये सब चीजें आपको समझनी है, और ये सिलेबस में नहीं है, राइट? तो इसलिए मेरा आप लोगों को पर्सनल सजेशन है कि आज से ही अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दो आप। टैक्सेशन, कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, खासतौर पे अकाउंटिंग, राइट? 11th 12th जिन लोगों का अकाउंटिंग नहीं रहा है वो लोग और खास तौर पे ध्यान दो अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को लेकर। बहुत सारे क्वेश्चंस अकाउंटिंग को लेकर पूछे जाते हैं, ठीक है? ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं आपके सामने, ठीक है? एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं फाइनेंस के स्टूडेंट्स के साथ। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट what are the what is the uh, what is how do you compute earning per share? अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हो आप? Sir, profit after tax divided by number of shares. और नंबर ऑफ शेयर्स कौन कौन से लेते हो? ओनली इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स आल्सो? Equity shares. Equity shares. ओनली इक्विटी शेयर्स, नॉट प्रेफरेंस शेयर्स? Yes, sir. All right, all right. Okay, good try. Okay, good answer. So, this is also one of the this kind of questions. So, देखो आपको बहुत ज्यादा स्टडी यही सब्जेक्ट्स करने हैं। अगर आप बहुत अच्छे हो अकाउंटिंग में, जर्नल एंट्रीज में, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम है तो ध्यान देना है। जब आप लोगों के कॉलेज में सेशन से स्टार्ट हो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग, रेशियो एनालिसिस, वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छे से पढ़ो आप। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब मैं बोलता हूँ तो ये सारे सब्जेक्ट्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है, ठीक है? लेकिन जैसा आज हम लोगों का सेशन था, थोड़ा ओवरव्यू था। नेक्स्ट सेशन जो रहेगा, एक और हम लोग जैसे नेक्स्ट संडे प्लान कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग डीप में जाएंगे। हम लोग एक एक टॉपिक हर कंपनी के सिलेक्शन प्रोसेस को और डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ठीक है? जहां तक मार्केटिंग के स्टूडेंट्स का सवाल है, उन लोगों के लिए जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है वो होता है 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ठीक है? तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जो लोग मार्केटिंग के स्टूडेंट है, दे कैन टेल मी व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग? Sir, product, price, promotion, place. Product, price, place and promotion. Okay, fantastic, Rishabh. What is the difference? What is the difference between B2C and D2C? मैं लिख देता हूँ, ये इनफैक्ट सभी को पता होना चाहिए, जो फाइनेंस के हो या कॉमर्स। B2C and D2C, and especially those who are from marketing side, preferably वो अगर आंसर करते हैं तो। ऑलराइट, तो ये सब प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो दुनिया इन्हीं पे चल रही है।
आजकल D2C इज अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी। पहले B2B और B2C तो सुनने में आता ही था, और D2C भी अब बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी हो गई, इट्स डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो अब आप लोग अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को भी बढ़ाइए, और ये सब क्वेश्चंस के लिए अपने आप को रेडी रखना है। देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि ये सेल्स एंड मार्केटिंग की क्वेश्चन है। जो लोग सेल्स मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट इसका स्नैपशॉट ले लो आप। सबसे कॉमन क्वेश्चंस हैं ये। इन क्वेश्चंस के आंसर्स नेचुरली इम्पैक्टफुल वे में आप देते हो अगर, तो बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, दिस इज अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग। देन सेम गोज फॉर HR स्पेशलाइजेशन। HR में आप ये कुछ चीजें नोट कर सकते हो जो आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड कनेक्ट करवाते हैं। जो लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सोच रहे हैं ई कॉमर्स कंपनीज के लिए, उनके लिए ये क्वेश्चंस है। इसी तरह से HR के इंटरव्यू के लिए भी आपको रेडी रहना है। दे लुक इजी क्वेश्चंस 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, अपने आप को कहाँ देखते हो। तो ये अभी तक तो बहुत इजी क्वेश्चंस लगते थे आपको भी MBA एंट्रेंस के हिसाब से, लेकिन जब आप लोग इसको कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें HR के राउंड्स में सब चीजें कवर करेंगे। बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, हाउ विल यू मैनेज टू वर्क आउटसाइड योर होम टाउन। ये सब इस टाइप के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। सपोज यू हैव अ बिजनेस एट योर होम, व्हाई आर यू डूइंग अ जॉब व्हेन यू हैव अ बिजनेस एट योर होम। तो इस टाइप के कुछ जो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस है, बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चंस है। दैट हाउ विल यू मैनेज टू वर्क आउटसाइड, हाउ विल यू हैंडल वर्क प्रेशर। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी आपको अपने आप को रेडी करना है। राइट, सो सेल्फ क्लैरिटी, ये मैंने आपको बताया। राइट, ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना। सीक्वेंशियल इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा आप ध्यान दो कैंपस पे, कैंपस की तैयारी पे। दूसरा, फोकस इंटर्नशिप्स पर। इंटर्नशिप्स में भी कोशिश ये करो कि अगर कोई बड़ा ब्रांड अगर आपको मिलता है तो वो बहुत हेल्प कर जाता है। ठीक है, ऑल्दो इंटर्नशिप के ऊपर हम लोग आपके लिए एक ऑलरेडी हमने एक असिस्टेंस प्रोग्राम प्लान किया हुआ है। उसके डिटेल्स आपको आ जाएंगे। लाइव प्रोजेक्ट्स थर्ड वन, फोर्थ वन इज इंटर्नशिप फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स, एंड फिफ्थ सर्टिफिकेशंस। राइट, तो ये सीक्वेंशियल इंपॉर्टेंस है मेरे हिसाब से। आपको अगर आपका ड्रीम जॉब लेना है तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका भी एक स्नैपशॉट ले लो। जब भी आप MBA में कंफ्यूज हो, या जब भी आप देखो कि यार आपके फ्रेंड्स तो के पास तो 10 सर्टिफिकेट है, मेरे पास तो एक भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इस स्लाइड को देख लेना और सोच लेना कि यार इस सर्टिफिकेशन का तो इम्पोर्टेंस कितना कम है, 5th लेवल पे है वो। तो मुझे डरना नहीं है कि चलो ठीक है सर्टिफिकेशन नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर कैंपस की बहुत अच्छी तैयारी करी है, एक भी सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी आप बहुत आगे हो उससे। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्लाइड से आप अपनी आप सीक्वेंसिंग रेडी कर सकते हो, और एक माइंड में चीज बना सकते हो कि मुझे किस चीज पे कितना ध्यान देना है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में कहा था कि आप लोग इंटर्नशिप्स भी है, सर्टिफिकेट्स भी है, एग्जाम्स भी है, इंटरनल्स भी हैं, फिर आपकी कमिटीज बन जाती हैं, और ऑब्वियसली MBA कर रहे हो तो थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ता है। राइट, तो ये सब चीजों के बीच में कैंपस की तैयारी को भूलना नहीं है आपको। कैंपस की तैयारी सबसे ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखना है। ठीक है, और भी कुछ मैं आपको टिप्स रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करता रहूंगा। आप लोग एटलीस्ट व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं आपको लिंक्स भेज देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप की। प्लस आज हम लोगों ने जो 2-3 बातें करी हैं, एक तो यूट्यूब पर कुछ हम लोगों ने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं स्टूडेंट्स के। तो आई एम जस्ट शेयरिंग यू द लिंक्स ऑफ टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो ये आप जरूर से इनको ज्वाइन कर लेना। यू विल गेट ऑल दीज काइंड ऑफ टिप्स टेक्निक्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। And then there will on the telegram group you will have access to all the previous chats as well। तो उसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट, ये लोग RCCM के लिए मैंने एक जो वीडियो शेयर किया है उसको जरूर देखिएगा। डेलॉइट के लिए एक वीडियो शेयर किया, पूरा प्रोसेस उसमें शेयर्ड है।
इट्स 5-10 मिनट्स वीडियो, उसको भी आप देखिएगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो और ये स्लाइड जो है, इस स्लाइड को आप ध्यान रखिएगा, दिस इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। ये कभी नहीं करना है सर्टिफिकेट्स, राइट? ये तो आई एम श्योर कि अब आप क्लियर ही हो गए हो। ऐसा सर्टिफिकेट्स हर जगह से लेकर आओगे, आखिरी में आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे रेज्यूमे में कौन सा सर्टिफिकेट दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है। और जितने सर्टिफिकेट दिखाओगे उतने चांसेस बढ़ेंगे इंटरव्यूअर के कि वो उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे आपको। तो आप जितने सर्टिफिकेट लिखोगे उतना ही आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो ये ट्रिकी चीज है इसलिए हमको लिमिटेड ही सर्टिफिकेशंस दिखाना है, और उस जितना दिखा रहे हैं उसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द थॉट्स फ्रॉम माय साइड। आज के सेशन को अगर कंक्लूड करते हैं तो सबसे पहले सिलेक्शन टेस्ट के लिए अच्छे से रेडीनेस रखिएगा। फाइनेंस के स्टूडेंट्स वर्सन टेस्ट, आरसीसीएम के टेस्ट की तैयारी कर लोगे अगर, दो कंपनीज के आपने रिटर्न टेस्ट की तैयारी कर ली अगर, तो आप आगे की दूसरी कंपनीज की भी आपकी काफी लेवल पे तैयारी हो जाएगी। तो डेलॉइट और आरसीसीएम, इनके सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी करिए। जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं वो खास तौर पे एप्टीट्यूड टेस्ट को रिफ्रेश करना स्टार्ट कर दो, उनका सिलेक्शन टेस्ट उसी पर होता है। जीडीज की मार्केटिंग के स्टूडेंट्स आज से ही तैयारी करो, टॉप 10 न्यूज तो चल रही है अभी, और सेम गोज फॉर फाइनेंस के स्टूडेंट्स भी। टॉप 10 न्यूज जो है बिजनेस और इकोनॉमी से रिलेटेड, प्लीज पढ़ो आप। आरसीसीएम के इंटरव्यू को अगर आप क्लोजली मॉनिटर करोगे तो वो केवल थियोरेटिकल नहीं पूछते हैं, वो आज इंडस्ट्री में क्या चल रहा है आपको पता है। अभी लाइक जो हॉट न्यूज है इंडस्ट्री में वो ये है कि देयर इज अ बैंकिंग क्राइसिस गोइंग ऑन ग्लोबली, बैंकिंग क्राइसिस इज गोइंग ऑन, वो आपसे उसका इन एंड आउट पूछेंगे। बैंक्स क्यों डूब गई, ऐसी क्या गलतियां अगर बैंक्स नहीं करती तो वो नहीं डूबती, या फिर बैंक्स उनके कोलैप्स के बाद ऐसा क्या इम्पैक्ट हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड जो अब हम आगे फील कर सकते हैं। तो दे विल आस्क यू फॉर अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑन दैट। इसलिए आपको अपने आप को जनरल नॉलेज से भी अपने आप को अपडेटेड रखना है। रेज्यूमे को लेकर मैंने बता दिया आपको। रेज्यूमे आप अपने, अगर आपने प्रिपेयर किए हैं आप ऑफिस नंबर पे शेयर कर सकते हो, और अगर नहीं प्रिपेयर्ड है तो आप मुझे बताइएगा, हम लोग आपको रेज्यूमे का फॉर्मेट शेयर कर देंगे, बट टाइमली बना लीजिए उसको। इंटर्नशिप और लाइव प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आपको जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट करना चाहिए। लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव हो जाओ आप लोग। लिंक्डइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म दीज डेज। जो लोग भी जॉब सर्च करना चाहते हो या जॉब मार्केट में एक्टिवनेस बनाना चाहते हो तो लिंक्डइन के ऊपर आप थोड़ा एक्टिव हो जाओ। इंटर्नशिप में भी आपको वो चीज काफी हेल्प करेंगी, राइट? सो these are, I think, some of the broad points that we had with you. Although we crossed the time, मैंने आपको 90 minutes का बोला था, we are already running late, 20 minutes उसके ऊपर हो गए। लेकिन I believe कि ये जरूरी है डिस्कशन। Although मुझे personally speaking, from my side it was only 10% of what we have to discuss, right? हम लोगों का अगर पूरा डिस्कशन की अगर बात करें तो ये बहुत वास्ट डिस्कशन है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग जॉब के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लाइक एक ब्रॉड आई थिंक स्टार्ट हो गई आप लोगों के साथ, और आगे हम लोग और डिस्कशंस करते रहेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप हमसे कनेक्टेड ही रहोगे, तो वहाँ पे भी आपको अपडेट्स आती रहेंगी। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो अगर, सो यस, यू कैन हैव द आंसर्स फॉर दोस क्वेश्चंस। यस, एनीवन? All right. So before I'll take your leave, the हाँ ऋषभ बोलिए। Sir, I have done CA inter study, but not cleared it. So can it be beneficial for placement? डेफिनेटली आपको वो जो प्रिपरेशन आपने करी है वो बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे। और जो मैंने 3 सब्जेक्ट्स आपको बोले, अकाउंटिंग, टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और लिटिल बिट ऑफ कॉस्टिंग, तो डेफिनेटली आपको एक एज रहेगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में, क्योंकि आपने सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा डीप में पढ़े हैं। तो Yes. मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज रहने वाला है इन चीजों का।
in terms of knowledge, in terms of shortlisting में as such कोई उनका specification नहीं रहता है, तो knowledge के terms में definitely आपको फायदा होगा. Okay, sir. All right, thank you very much. Do you have physical institute for preparation for placement campus? Yes, we have. As I told you, like we are in Indore itself. So हम लोगों का जो institute है, that is at Vijayanagar, Indore. आप लोग definitely उसको visit कर सकते हो. You can give a call on our office number. They will fix the time for you. If you want to speak with me on personal this thing, face to face अगर आप मिलना चाहते हो तो definitely आप मिल सकते हो. और हम लोग की क्लासेस भी दोनों ही मोड्स में आपको आगे अवेलेबल रहेंगी. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच. सो टुडेज विनर जिन लोगों ने आंसर्स दिए हैं, वन इज नंदिनी, सेकंड इज ऋषभ एंड थर्ड मुस्कान. राइट, आप लोग जस्ट सेंड अस योर जीपे, फोन पे और पेटीएम, जो भी आपका यूपीआई नंबर है, राइट, on our office number, that is जिससे आपको जनरली मैसेजेस आते हैं. आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन. ठीक है, you will get your cash prize plus whatever price the office will send to you, right? So drop a message on that and you will get it. So once again, thank you very much for you people's active participation and fantastic discussion. I thoroughly enjoyed it, and I definitely look forward to see all of you in our upcoming sessions. All right, thank you very much and all the very best. Bye bye.